पास टेक्नोलॉजी है उससे आगे क्या करना है हमें, हाउ टू रेज फंड्स, हाउ टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स जो डायरेक्टली हमारे डोमेन में नहीं है, जो हमें स्किल सेट एक्वायर करना है. So continuing in that, so we have this tutorial designed for you where we'll be talking, we have two resource persons who will be talking about assessing the market readiness and the commercialization potential. So we are very fortunate to have with us Professor Manu Sharma, who is a senior faculty at University Institute of Engineering and Technology. Some of you might already know him. He is a professor of mechanical engineer, but more than that, he is heading the Technology Enabling Center. We had a talk earlier by Mr. Prateek, and now we will have two presentations, and the other person along with him is Dr. Virender, and he is also a manager at Technology Enabling Center. And Dr. Manu is also heading the Center for Industry Institute Partnership Program at Punjab University. And he has worked relentlessly to bring the startup culture to Punjab University, not only for the students, but for the faculty as well. And he brought in new rules and regulations to how to, formalize that the faculty can also have startups of their own. Again, that is a very unconventional step which Punjab University has taken, and Punjab University has always been the, I would say, the torchbearer for new things. And I feel very fortunate to belong to Punjab University as a faculty, जहाँ पे कि if you want to do anything, nobody stops you. किसी भी एरिया में कुछ भी काम करना चाहते हो तुम्हें, तो कोई रोकता नहीं है और फैसिलिटेट भी किया जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो गिवन एन ऑप्शन टू गो समवेयर एल्स, आई स्टिल प्रेफर टू स्टे बैक एट पंजाब यूनिवर्सिटी एंड बी अ फैकल्टी हियर. Of course, her organization ki, like, if nobody is working, then also they don't force you to work, but काम करने से तुम्हें कोई ना रोके, एंड किसी भी एरिया में तुम काम कर सको किसी से परमिशंस लिए बिना, कोई ऐसी बात नहीं है. मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव देयर मैंडेट्स, दे हैव टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम देयर डायरेक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड यू हैव द ऑटोनॉमी if you want to work. So that's the greatest thing about Punjab University. And Professor Manu is one of those persons who is setting up that ecosystem, that culture at Punjab University. So beyond that, he is a strong advocate of innovation-led academia, and he has been the one to bridge the gap between intellectual property and technology transfers. The Tech Enabling Center is regularly holding conferences, workshops, where they educate, they train, they motivate, and they introduce the faculty as well as the young students to, do various different things beyond research, beyond publications, and also beyond patents. So he has been the developer of the Armor Wire Tester, which has been transferred to Oceaneering International Services Limited. So बाकियों को भी ग्रो करा रहे हैं और खुद भी, he is doing his bit as well, and he has facilitated several successful technology transfers. He has leadership, he is providing leadership in innovation and entrepreneurship, and under his leadership, Tech has created 16 startups in the past 8 months. So churning out 2 startups every month, that's a big thing, and which some of them are really deep tech ventures, and he has organized 3 tech transfer conferences. I have also been part of a few of them, and they are starting, as Professor Rupinder Tiwari mentioned, they are starting a new workshop which is in a hybrid mode, which would start 1st of October till sometime in February, where you have different lectures, which online as well as offline, which you have to attend. And he has led 200 industry shop floor visits, systematically assessing the needs of the industry and how we can, bridge that gap. And as I said, he's been working for the policies for industrial consultancy ratios that have also been improved from 50-50 to 70-30, as I said, and then 80-20 for the
tech transfers and royalties. So he has strong research and academic credentials, and he did his PhD from IIT Delhi in active vibration control, authored several papers, book chapters, and he has 3 patents to his credit, and successfully executed multiple DST and AICT and industry funded projects. And the second resource person for today's tutorial is Dr. Virender Singh, who is currently working as the manager at DST Tech, as I said, and previous to this, he worked as research associate at Amrita School of Business, Bangalore, and also served as an assistant professor in several reputed institutions. He has contributed significantly as a project scientist in 2 major government-led projects, and has successfully transferred PET recycling, PET recycling technology to industry, and over the past year has been actively working with DST Tech, and I also had the honor of meeting him several times to, build up decks for my technologies and things like that, and he's been working in the domains of industry academia linkages, organizing national level conferences and consultancy projects. So over to you both, Hansi. Thank you so much, ma'am. No, I don't think so that it isn't required. Yes. So, good afternoon, all. So, for this session, the topic is assessing market readiness and commercial potential. So, you have already covered the topic which is related to the technology readiness. I hope you are quite aware about the different levels of the technology transfer. Yes or no? So, right now, I hope you are quite mature to understand and to know about the and to match make the technology at which level presently lies. So from 1 to 9 there are 9 basic levels. So I hope you can now available to assess the right maturity of the technology. Yes or no? Okay. So before moving forward, the topic is the market readiness. Many scientists are aware about the technology development from the research point of view to the development level, and it goes to the towards the deployment level, right? So the main problem basically lies to the or the challenges that the industry the scientists face that after the TRL4, which is the when the prototype is developed at the TRL4 stage, and then the value of death comes. And what do you mean by the value of death? So I think this is a tutorial, so we must have a very interactive session, so that I also request you to please do participate whatever the queries I would like to ask, and whatever from your end you want to ask, then it will be happy to schedule this session in a very effective way. So anyone of you who would like to say about that, what is the value of death? Yes, please. Yes. Any other? So at the ideation stage, when the scientist got the idea about developing the technology, right? So he has well-established fund from the various government agencies, right? And they can develop the product at the TRL4 stage, right? At a prototype that we can develop, right? But after that, the industry the scientist needs the industry for collaboration, right? And that there comes the value of death, right? So they do not find the right industry so that they can provide the hand-holding support to take that technology further towards the development and the deployment stage. Deployment means, anyone? Commercialization of the technology, towards the commercialization, right? And development, that means the mature product should be developed from the TRL4 to the TRL5 to the TRL6, right? Or 7, right?
Then at the 7, we see that the pilot scale plant can be developed, could be developed. So I hope you are aware about these, the levels of the technology readiness. So what is market readiness? Anyone? Anyone who would like to say few words about the what is the market readiness? Ready to enter into the market? Yes. Anybody else? Mm-hmm. Anyone else? To prepare the product for the market fit. Right? So what is market fit? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Basically to fulfill the need and requirement of the market, right? And what is our objective here? Objective is to successful commercialization of the product that has been developed by the scientist in the laboratory. Yes or no? I am right or wrong? Right? So this is the market readiness. Yes, last. No answer? Okay. So as I already told that many scientists are aware about the technology, but they are not quite aware about the what is the market and how it behaves, right? So many technologies fail because of the poor market sense, right? And many technologies will remains in the vault that they could not get into the scientists could not get it into the market, right? So due to the poor sense of the market. So today in this topic, we are going to cover what is the market readiness level, what is the commercialization readiness level, what are the market size, how to calculate the market size. Then we have the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and challenges that we are facing. Then next we have is the there is a success story that in past few months back we have transferred the PET recycling technology to the industry, right? So I will completely share the details about what basic process that I have followed for the transfer of the technology. And there are some few exercises that we are also going to cover, right, regarding the experimental or the mathematical calculation, how we can find the TAM, SAM, SOM, and the other things, right? So before moving forward, we have three things to cover. One is the TRL, that is the technology readiness level, which is given by the NASA. Yes or no? What is NASA? National, international. What is NASA? Any full form of NASA? Aeronautical, space, okay, administration, right? So NASA have given the level of the TRL to assess the technology, right? So let us understand what is the why this TRL level has been given, right? TRL measures the maturity of your technology, right? How mature your technology is, कितनी mature है आपकी technology, right? Market में आने के लिए. Then we have the are you in the early ideas and research stages. So basically there are three stages. One is the research stage, second is the development stage, and third is the deployment stage, right, when the product is ready to commercialize into the market. So three things have been covered in that. So research stages, and has your technology been validated and a prototype has been made, or once your technology has been tested and validated with the customer, it is ready for the commercial production, right? So TRL समझ आ गया सभी को? Okay. Then commercialization readiness level. Two things has been introduced by the Niti Aayog in new draft policy, which suggests that two things must be taken into account similar to the TRL. And what are those?
One is the commercialization readiness level, and second is the market readiness level. So commercialization readiness level is approach designed to give a framework for assessing a technology commercially ready, primarily for the goal of bringing it into the market. Understood? समझ आ गया ये? This encompasses market analysis. क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें? Market analysis, cost effectiveness, scalability, regulatory compliance, which are often not addressed by the TRL system. That means what is the basic difference between the TRL and CRL is that these things are not being covered in the TRL. Similarly, the market readiness level is refer to how ready your product or service is to come into the market. The MRL scale is intended to supplement the TRL and CRL. Both the TRL and CRL are complementary to each other. That means both having the same objective to successfully commercialization of the technology. That means what is our goal? To successful commercialization of technology. Got it? So these are the basic three things which are must be taken into account before moving forward. So this is the basic technology readiness level, which having the 9 basic principles, right? So first is the principle, very quick recall, right? Basic principle, observe and report it. That means the idea came into scientist mind and that he started preparing whatever the documentation he has. Second is the technology concept. That means design phase. That means by using the softwares like CAD. Is there anybody here from the engineering background? Okay, no? Okay. Third we have is the proof of concept. Then the fourth stage we have is the prototype validated in the laboratory. Then at the fifth stage we have the industry relevant environment. Then uske baad hai demonstration of that topic, that product. And then at the 7, pilot scale plant should be developed. And then after that at the TRL 8, the complete testing has been done. Then at the TRL 9, it is ready for the production. Got it? So this is the basic TRL. Now next we have is the CRL. Now this part is very important. Commercial readiness level. Commercial readiness level का first part क्या है? Basic value proposition of technology identified and reported. For example, suppose I recently have transferred the PET recycling technology. So what purpose PET recycling technology or the what value it is providing to the commercialization? PET क्या है? Anybody are you from the chemistry background? What is PET? PET is polythene terephthalate, right? Which is a polymer, right? So क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है वो? फर्स्ट फेज में CRL 1 में क्या होगा? What value that is providing? ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इस लेक्चर के बाद आपको ये असेसमेंट हो जाए कि आप असेस कैसे करोगे कमर्शियली स्केल पे क्या टेक्नोलॉजी है इस लेवल के ऊपर या नहीं है. टीआरएल को तो जज कर लोगे, राइट? क्या आप कमर्शियली जो है वो मार्केट के लिए रेडी है प्रोडक्ट या नहीं है, आप समझ पाओगे, उस चीज को मैच कर पाओगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग. तो जैसे प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या है, दैट मीन्स इको फ्रेंडली, यस और नो? सो दैट मीन्स दैट इज द वैल्यू दैट टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग. क्लियर? Second, we have business concept formulated with potential application. So for example, PET has a multiple. Plastic को convert जो depolymerize करके उसको क्या है, there are certain other things that we can form. लेकिन बहुत सारे other products हम बना सकते हैं. Like for example, DMT, dimethyl terephthalate, which is converted when PET is converted into monomer, pure monomer. Degradation जब करते हैं, then क्या बनता है? Then two monomers are formed, right? एक तो DMT बनता है, दूसरा MST बनता है, मोनोहाइड्रोक्सी इथाइल टेरिफ्लेट. हैव यू हेard अबाउट दोज वर्ड्स? क्या है ये मोनोमर? ओके. सो दैट मीन्स DMT जो है वो DMT कहाँ यूज होता है? सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी.
तो जब डिग्रेडेशन करते हैं पेट को तो उसके बाद जो है डीएमटी निकलता है, एमएसटी निकलता है, राइट, इथाइलिन ग्लाइकोल निकलता है, राइट। तो वो कहां कहां जो बेट आर द वेरियस एप्लीकेशंस, राइट। सो दैट इज बेसिकली यू हैव टू एड्रेस इन द CRL2, ठीक है। जितना ज्यादा हाई CRL2 होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके मार्केट में प्रोडक्ट के आने के या टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस के। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है? यस जी 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 हाँ, प्लास्टिक का जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी आता है, एंड देन उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में भी यूज़ किया जा रहा है। या यस यस यस, राइट। सिमिलरली CRL3 प्रूफ ऑफ बिजनेस केस क्या रहेगा? बिजनेस प्लान वैलिडेटेड, उसको सेल आउट कहां करना है? DMT कैन बी सोल्ड टू दी टेक्सटाइल फर्म्स, आपकी जीन्स बनती हैं, आपके जो भी जैकेट्स बनते हैं, राइट। तो क्या है उसका एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि आपने क्या है एक बिजनेस तैयार किया है, राइट। वो कहां है, बिजनेस होगा कहां पे, वो एक क्लियर रोड मैप। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो दैट मीन्स वो कहां कहां सोल्ड आउट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने DMT का एग्जांपल दिया, MST कैन बी फर्दर यूटिलाइज टू कन्वर्ट इट इनटू दी अगेन पेट बोटल्स द्वारा बन सकती हैं। जो बिस्लरी की पानी की बोतल आती है वो पेट है। क्लियर है सर सभी को? लास्ट में ये भी पेट है, राइट। इसको फिर दोबारा से डीपॉलीमराइज करते हैं, चॉपिंग करते हैं, देन अगेन इसको क्या है दोबारा फिर से पेट बनाते हैं, हाई ग्रेड पेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिमिलरली द केस इज दैट उसके बाद जो है वो MST द्वारा बोटल्स बना सकते हैं। देन इथाइलिन ग्लाइकोल कहां यूज हो सकता है? लाइक ऑटोमोबाइल फर्म्स, ग्लू मल्टीपल जगह पे यूज हो सकता है, राइट। रोड एंड कंस्ट्रक्शन का मैम ने भी कहा, राइट। सो दैट कैन बी यूटिलाइज इनटू द, आई थिंक दिस, कैन यू हियर मी? ओके, जस्ट फिक्स इट जस्ट, right? So we have the some kind of the proof of concept, then minimal viable product completed and pilot initiated. What does it mean? Minimal viable product mean prototype as per the need only, right? Any product which is developed for the fulfilling the need only. Getting my point? Similar, and then minimal marketable product, because at TRL3 or TRL4 when you ask about the minimal viable product and sell it to the market, right, और किसी को भी आप एक सैंपल के तौर पे भेजोगे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। यू हैव टू एड्रेस दैट फॉर मोर मैच्योरिटी ऑफ योर CRL। देन उसके बाद मिनिमम मार्केटेबल प्रोडक्ट आ गया कि जो मिनिमम क्या है वो मार्केटेबल कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को। गेटिंग माई पॉइंट? देन नेक्स्ट है मिनिमम मार्केटेबल प्रोडक्ट डिप्लॉयड इन द मार्केट। डेवलप कर लिया, देन क्या है डिप्लॉय। अगेन वो सेम फिनोमिना चल रहा है जैसे TRL में है, राइट। फर्स्ट में क्या किया आपने, एक बिजनेस फॉर्मुलेशन करनी है, देन उसके बाद क्या है मार्केटेबल प्रोडक्ट, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? देन लास्ट वी हैव द मैच्योर प्रोडक्ट डिजाइन। अब मैच्योर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जैसे मान लो एट TRL6 के ऊपर जो है वो 20 to 30 आपने जो है वो सैंपल जो है वो मार्केट में उतारे, राइट। फ्रॉम देयर यू हैव गेट द सेंस ऑफ द मार्केट, दैट मार्केट क्या चाहता है, राइट। एंड उसके बाद आपने जो है वो दोबारा फिर से जो है वो मैच्योर प्रोडक्ट निकाला, राइट। देन उसके बाद जो है वो टारगेट अचीव्ड, टारगेट भी सेट करने हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी पार्ट लेना है, राइट। सो दैट आप क्या है सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। समझ आ रहा है बात? क्लियर है ये CRL? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें या कोई इशू है या कुछ पूछना चाहता है, देन मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वी हैव इज द मार्केट रेडीनेस लेवल। सिमिलरली वी हैव द मार्केट रेडीनेस लेवल। हम डिफरेंस थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगेन बेसिक मार्केट नीड परसीव्ड, राइट। तो मार्केट की नीड क्या है? सपोज अभी रिसाइकलिंग जो हो रही है वो मैकेनिकल रिसाइकलिंग हो रही है जिसमें मैन पावर बहुत यूटिलाइज हो रहा है, राइट। सो व्हाट वी वांट
or government, what government wants? They want to convert the entire fleet into the towards the chemical recycling, right? So that means हमें क्या है, need पता लगी है. Getting my point? Again, potential business model formulated and value proposition same. मैं फिर से कह रहा हूं कि both are CRL and MRL, both are complementary to each other and solving the same purpose. क्या है वो? Successful commercialization of the technology. But MRL क्या है? MRL जाता किस तरफ है? Consumers, stakeholders की तरफ. Whereas CRL किस तरफ जाता है? बताओ. Yes, right. Successful commercialization कब होगी? When you have some kind of the revenue. आपने मार्केट में प्रोडक्ट उतारा, दैट डजंट मीन्स कि हाँ कि वो जो है वो सक्सेसफुल है, अनटिल जब तक आप उसमें क्या है कि रिवेन्यू ना जनरेट कर लो. गेटिंग माई पॉइंट? सो सिमिलरली दीज आर दी मार्केट रेडनेस लेवल. ओके, सो आई विल शेयर दी स्लाइड्स टू यू एंड पीपीटी जो है वो बाद में शेयर कर दी जाएगी, राइट? सो यू कैन असेस इजिली एंड वट एवर योर प्रॉब्लम या क्वेश्चन होंगे वो मैं एड्रेस कर दूंगा, राइट? So let's talk about the basic difference between CRL and MRL. दोनों बड़े सेम से दिखते हैं, लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस है? तो कमर्शियलाइजेशन रेडनेस लेवल क्या है कि जो कि फोकस करता है किसके ऊपर? बिजनेस एंड कमर्शियलाइजेशन साइड के ऊपर. रिवेन्यू कितना आएगा हमें सिर्फ उससे मतलब है. Whether the technology has moved from a concept to a validated business model, operation process, sustained revenue. Got it? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. इज द टेक्नोलॉजी रेडी टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस? क्लियर है चीज? क्या वो टेक्नोलॉजी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकती है या नहीं कर सकती है खड़ा? क्या उसमें आगे जाने की नीड है या नहीं है? और मैक्सिमम 90 से 80 से 90% टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मार्केट अभी तक उनकी सेट नहीं है. कारण क्या है? इसीलिए जो है वो नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि ताकि साइंटिस्ट साइड बाय साइड जो है वो कमर्शियल रेडनेस लेवल को भी असेस करे और साथ में मार्केट रेडीनेस लेवल को भी असेस करे. गॉट इट? सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि आर वी द कंपनी रेडी टू स्केल एंड रन अ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वेयर एज द मार्केट रेडीनेस लेवल फोकसेस ऑन मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए और फिट साइड के लिए. गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज है कि कंज्यूमर सेंस, इंटेंशन टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट. एक सर्वे करना बहुत नीडेड है, मच नीडेड है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जो आपको बताता है कि क्या वाकई में कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को सिर्फ परचेज ही करना चाहता है, उसको अडॉप्ट भी करना चाहता है. मैं प्लास्टिक की बोतल के साथ में अभी पानी पी लूंगा, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसको घर लेके जाऊंगा. गेटिंग माई पॉइंट? आंसर मेरा क्लियर है कि हाँ कि मैं यहां पानी पी के इसको जो है वो थ्रो कर दूंगा, मैं उसको घर नहीं लेके जाऊंगा. क्लियर है? सिमिलरली जो है वो मेरा इंटेंशन क्या है? सपोज आई एम गोइंग टू परचेज सम प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, राइट? मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं उसको परचेज करके रख लूंगा. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, 3-3 गाड़ियां रख लेते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो क्या वाकई उनकी इंटेंशन थी खरीदने की, अडॉप्ट करने की थी? उन्हें सिर्फ परचेज मॉडल फॉलो किया है कि हम परचेज करेंगे, बट एक्चुअली दे आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स द एडॉप्शन. क्लियर है चीजें? समझ आ रहा है या नहीं? ओके. So the basic difference between these two are the one behaves according to the business and commercialization side and the other behaves towards the market demand, जो कि सिर्फ कंज्यूमर को देखता है, सेल्स को, then after that the stakeholders and overall market को. Got it? Again मैंने नोट स्पेशली दिया है इसलिए कि think of CRL as business maturity, ताकि आपको याद रहे. Whereas MRL कैसे देखना है आपने? मार्केट मैच्योरिटी के लिए. आपके स्टेप्स उसी तरफ होने चाहिए. गॉट इट? क्लियर है चीज ये? अब ये शायद लास्ट में ना दिखाई दे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाओ तो. क्या CRL MRL समझ आ गया है या मैं इसको स्किप कर दूं?
मैंने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने CRL और MRL को जो है वो डिस्प्ले किया है, जिसमें क्या है कि बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। सपोज मैंने पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का एक CRL निकालना था, राइट। मैंने क्या देखा कि पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस वेस्ट, प्रोवाइड सस्टेनेबल रॉ मटेरियल। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? इको फ्रेंडली प्लस कॉस्ट सेविंग प्लस कैटलिस्ट रिसाइकलिंग। दैट मीन्स साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट this catalyst can be utilized or used multiple times, means 300 times, and without affecting the environmental conditions. ठीक है, मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या क्लेम कर दिया कि उसने टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है, उसके पास क्या है, उसका कैटलिस्ट बार बार यूज हो सकता है, 300 टाइम्स यूज कर लिया उसने, और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बिकॉज रेगुलेशंस क्या है, क्या बोलती है रेगुलेशंस की? हाँ, कि आपको जो है वो एनवायरमेंट दूषित नहीं करना है विद योर टेक्नोलॉजी। So that means केमिकल रिसाइकलिंग, पहले तो मेन पर्पस था कि मैकेनिकल से जो है वो प्लेयर्स को कैसे जो है वो केमिकल रिसाइकलिंग की तरफ लाया जाए ताकि मैन पावर रिड्यूस हो जाए। क्लियर आ गई चीज, सबको समझ आ गया? देन सेकंड में बिजनेस कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड। मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया कि बिजनेस कंसेप्ट कैसे फॉर्म होगा। दैट मींस द सेटअप ऑफ पेट रिसाइकलिंग प्लांट एंड सेल DMT, MHT, EG टू टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग फर्म्स, राइट। सो मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी शुरू की उसकी, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अगेंस्ट क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, राइट। एप्लीकेशन फाइंड आउट करना इतना मच नीडेड है कि जो डायरेक्टली आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल रिवेन्यू के मॉडल्स नहीं होंगे, दैट मीन्स इट विल कंप्लीटली बी ए डिजास्टर टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक पर्पज सॉल्व कर रही है जो उसका कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? Whereas the business plan validated with proof of concept, that means how drafting करना, documents का, business plan तैयार करना, so all these things will be cover up to 1 to 3 level of the CRL. Whereas minimal viable product का example देखना है तो pilot plant developed with capacity of 100 kg. Got it? Then larger bio plant की तरफ जाना है. Then MMP deployed, first sale achieved हुई है नहीं हुई है, right? ऑर्डर्स रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। देन टेक्नोलॉजी स्केल अप, मार्केट स्ट्रेटजी टेस्टेड है या नहीं है, किस तरीके से जो है वो आपने, मान लो फूड प्रोडक्ट है, कोई लॉन्च करना चाह रहा है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सारी क्लियर है या नहीं है, राइट। वेयर टू सेल। सिमिलरली द MRL, बेसिक मार्केट एंड असेसमेंट। अब बेसिक मार्केट असेसमेंट क्या होगी? दैट मीन्स इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड अल्टरनेटिव टू मैकेनिकल रिसाइकलिंग विद हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट थी? इंडस्ट्री चाहती थी कि हम यूरोप में सेल आउट करेंगे विद द 99% प्योर हाई क्वालिटी ऑफ द मोनोमर। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो चीजें अगर बिजनेस चलाना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वन इज द, या तो क्वालिटी हाई कर दो या तो फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आप क्वालिटी हाई कर दोगे दैट मीन्स आपका कंपटीटर क्या है, वैसे डाउन चला जाएगा। या तो फिर अगर क्वालिटी नहीं दे सकते हो देन अल्टीमेटली क्या है, आपको कॉस्ट को डाउन पे लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं देन, या इसे तीसरी कोई चीज है, मैं आज पता इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जो मार्केट इंडियन मार्केट है कैसे बिहेव करती है। दे ओनली थिंक अबाउट द क्वालिटी एंड द कॉस्ट। ये कर लोगे? नेक्स्ट आगे अगर मैं आपको PPT शेयर कर दूं, यस और नो, या एक्सप्लेन करना है इसका, तो कितने लोग, प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को जो है वो CRL MRL समझ आ गया है? ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीवन ना? ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट साइज। अब मार्केट साइज कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दुविधा साइंटिस्ट के लिए क्या आती है कि मार्केट साइज को कैलकुलेट कैसे करें, कितना बड़ा मार्केट है। So one of the best technique we have is the TAM, SAM, SOM, and I have also introduced the one more part, that is the EVG. And what is EVG? Early evangelist. कितने भूखे बैठे हुए हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं? Getting my point? बड़ी सिंपल भाषा में, देसी भाषा में यूज कर रहा हूं मैं कि कितने लोग जो है वो, जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम जैसे मार्केट में प्रोडक्ट आया और हम परचेज कर लेंगे। दैट मीन्स द अर्लियर अडॉप्टर्स।
मान लो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो एक मॉडल तैयार किया मैंने, उसको जो है वो मार्केट में उतारना है प्रोडक्ट, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे सोचना पड़ेगा कि हाँ कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, यस और नो। तो अगर मुझे खरीदना है तो दैट मीन्स अगर मेरा पहले से 10 साल का प्लान है तो वो मैं किस कैटेगरी में आ गया, ईवीजी कैटेगरी में। दैट मीन्स मैं सिर्फ भूखा बन के बैठा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हाँ कि जब ये प्रोडक्ट आएगा मार्केट में मैं उसको परचेज करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फोन देखते हैं, नया फोन परचेज करते हैं, राइट, तो इंतजार करते हैं यार वो अगले मंथ आएगी उसकी सेल। तो दैट मीन्स वी आर दी अर्ली अडॉप्टर्स, राइट। कार लॉन्च होती है कि नहीं, सबसे पहले बड़ी बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो फॉलो करती है सेल करने के लिए। 10-20 या 4-5 महीने पहले क्या है वो बुकिंग करना शुरू कर देती है। इससे उनको जो है वो इन्वेंट्री का भी खतरा नहीं रहता कि ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, और पता भी लग जाता है कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में चलने वाला है या नहीं है, मार्केट में उतर सकता है या नहीं उतर सकता है। ऐसा ना हो कि, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में देखो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स भी हैं जो भी हैं, तो जो भी हैं इन्वेस्टर्स वो पर्टिकुलरली क्या सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, हमें धंधा कितना होगा उससे। सिंपल बात करते हैं कि हाँ कि धंधा कितना होगा, वो थोड़ा सा सुनेंगे कि हाँ कि टेक्नोलॉजी आपकी है क्या, लेकिन फिर घूम फिर के कहां पे आएंगे कि ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, ऑपरेशन कॉस्ट के बाद जो है वो अल्टीमेटली मुझे कितना मुनाफा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अगर एक सिंपल तौर के ऊपर एक एग्जांपल के तौर पर पहले इसको समझ लेते हैं, या फिर अंडरस्टूड है ये टैम सैमसोम अंडरस्टूड है, बताया है ना, हाँ, तो फिर मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ऐसे समझ लेना, अगर आपने याद रखना होगा मैं बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। टैम इज द वर्ल्ड, राइट, सैम इज द इंडिया, राइट, सोम क्या है स्टेट्स, एंड ईवीजी आर दी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको, सपोज एक टेक्नोलॉजी है विच इज अ न्यू डायबिटिक्स ड्रग इन इंडिया, ठीक है, इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकालना है। इंडिया हैज 7.7 करोड़ डायबिटीज। एज्यूम एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ डायबिटीज मेडिसिन, मान लो किसी पर्सन का जो है वो एनुअल खर्चा कितना आ रहा है मेडिसिन के ऊपर, 10,000 रुपीज। हाउ यू विल कैलकुलेट द टैम, एनीबडी? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। आज इस लेक्चर के बाद आप ऐसे नहीं घर जाने चाहिए कि हाँ कि आप सोचें कि हमें टाइम भी निकालना नहीं आता है राइट तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कि ये इंडस्ट्री में यूज होगा समझ रहे हैं बात को। आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ इकोसिस्टम आपको जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि पॉलिसी डिजाइन कर रहा है, स्टार्टअप के लिए आपको फंड दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मीन्स ये बेसिक चीजें हैं जो कि इन्वेस्टर भी आपसे पूछेगा एट द लास्ट ऑफ द स्लाइड्स, जब आप पिच करोगे ना 7 मिनट के लिए, ठीक है, वो ये पूछेगा कि हाँ कि व्हाट इज टैम सैमसंग, कहाँ है आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है मार्केट में उतारना है कि चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। अब सैम क्या है? छोटा सा पोर्शन किसका? टैम का। सिमिलरली सोम का, सोम भी किसका छोटा सा पोर्शन किसका आ गया, ठीक है। अगेन ईवीजी कौन से हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है कि टू सो एज्यूम 10% ऑफ द सोम इनिशियली। क्लियर है? आ जाएगा निकालने? मैं एक्सरसाइज करवाऊं या फिर मैं स्किप कर दूं? हो गया सर ठीक है। देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर एनालाइजिंग द मार्केट रेडीनेस, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एनालाइजिंग मार्केट डायनेमिक्स। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहा हूं और मुझे कल्चर की सेंस नहीं है। साउथ में कल्चर बिहेव कर, साउथ में क्या है, फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? मोर टेक्नोलॉजिकली साइड। उनको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ की चटक मटक है या दिखावा है क्या है, उनको नहीं फर्क पड़ता सिंपल सी बात है। उनको टेक्नोलॉजी से मतलब है कि उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, एज पर उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्थ में सर मसालेदार चीजें टेक्नोलॉजी तो चलेगी चलेगी सर, टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं बनेगा ना क्लियर है चीजें? देन सेकंड वी हैव इज द मार्केट रिसर्च एनालिसिस।
तो स्वोट भी है, बहुत सारे एनालिसिस टूल भी हैं, ठीक है। मार्केट का आप सर्वे करवा सकते हैं, राइट। सर्वे के लिए जो है वो उसके बाद उसको डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए आर फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस है, राइट। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास एसपीएसएस है, राइट। तो आप डेमोग्राफिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फैमिली इनकम निकाल सकते हैं, वो सारे डेमोग्राफिक के वेरिएबल्स आते हैं, राइट। और आप जो है वो क्वेश्चनरी भी सेट कर सकते हैं, तो उनको देन फर्दर एसपीएसएस लगा के जो है देन एमएस में जो है वो आप उनका इंपैक्ट ऑन ईच अदर फैक्टर जो है वो आप निकाल सकते हैं, राइट। वो भी एक बड़ी अच्छी, लेकिन वो एडवांस लेवल के जो जिनके पास जो है वो काफ़ी मैच्योर फंड होता है, देन दे अडॉप्ट दोज टेक्नोलॉजीज। देन थर्ड भी है असेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। मान लो कि आपका एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अ फूड डिलीवरी स्टार्टअप कंसीडरिंग एक्सपेंशन टू चंडीगढ़ मोहाली रीजन मस्ट असेस द रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी नेटवर्क्स एंड एड्रेसिंग एनी गैप्स। क्लियर है, ठीक है। देन रिस्क असेसमेंट, रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, राइट। देन टेस्टिंग द वाटर, व्हाट इज द टेस्टिंग द वाटर? एनीबॉडी ऑफ यू? लेट्स सी एज जो एग्जांपल दिया है, कंपनी टाई अप विद गवर्नमेंट एंड इंट्रोड्यूस 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेज इन शिमला हिली टेरेन एरियाज, राइट, ऑन द ट्रायल बेसिस के ऊपर कि सबसे पहले टेस्ट करना है। सिमिलरली टेस्ला ने क्या किया, चाइना में जो है वो अपना 50 व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जो ट्रक है उनका, ठीक है, वो उन्होंने मार्केट में उतारा जस्ट टू असेस द मार्केट रिक्वायरमेंट, राइट। सो ये भी जरूरी है कंसेप्ट, प्रमोटिंग अवेयरनेस एक तो, देन दूसरा क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अंडरस्टैंड डिमांड एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिक चीजें हैं कि जो कि आपके एग्जाम्पल के हिसाब से वेरी करती हैं, राइट। एंड आल्सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये एनर्जी एनवायरमेंट फेज के अकॉर्डिंगली हैं, तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल से है तो देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स, राइट। ज़्यादा नहीं लेकिन मिलती जुलती ही रहेंगी। देन स्वोक एनालिसिस। अब आपने पहले स्वोट सुना होगा, ये स्वोक क्या है? टाइम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो गया, आधे घंटे हुआ ना। स्वोट तो सुना था, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब स्वोट क्या है? ये मैंने गलत तो लिख दिया है, टी होना था यहां पे, ठीक है। बेसिकली जो थ्रेट्स है वो पार्ट चलता है किस वाली साइड, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस है, राइट, और हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल में भी चले, राइट, ह्यूमन राइट्स का, राइट। तो थोड़ा सा मैंने जो है वो इसको चेंज किया, मैं किस तरफ ले गया इसको, चैलेंजेस वाली साइड को, राइट। तो मैंने क्या किया, एक जो मैंने ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं पेट के अकॉर्डिंग दे रहा हूं कि जैसे कैसे मैंने जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के केसेस में इन चीज़ों को ऐड ऑन किया था, राइट। तो मेरे स्ट्रेंथ क्या थी मेरी, वो मैंने जब फाइंड आउट की तो साइंटिस्ट ने 99% प्योरिटी का जो है वो मोनोमर तैयार किया था। प्योरिटी का जो है वो मोनोमर तैयार किया था, ठीक है, जिसकी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में जो है वो डिमांड बहुत है, राइट। उसके बाद जो है वो टेस्टेड, एनएबीएल टेस्टेड था। देन सेकंड इज कि ग्रांटेड पेटेंट थे कितने, 2। वो वेटेज डालता है, कोई इंडस्ट्री है चीज को खरीदेगी तो सबसे पहले देखेगा कि वाकई में ये चीज वैलिड है या नहीं, कैसे वैलिड होगी, पेटेंट्स। देन थर्ड मल्टीपल रिवेन्यू स्ट्रीम, कितने तरह के एप्लीकेशंस नजर आ रहे हैं, डीएमटी, एमएचटी, ईजी, दैट मीन मल्टीपल मार्केट पोटेंशियल, ह्यूज कैन बी सेड। उसी तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी थी कि हाई ग्लोबल डिमांड ऑफ पेट और क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए है मार्केट में। देन सेकंड वी हैव सर्कुलर इकोनॉमी पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, पंजाब भी ऐसा ही कर रहा है कि कैसे जो है वो रिसाइकलिंग की जाए प्रोडक्ट्स की, देन कन्वर्टेड इनटू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देन चैलेंजेस, वीकनेस, चैलेंजेस आप समझ जाएंगे, ओके। नाउ ये जर्नी है, 3 मंथ्स बैक मैंने एक पेट रिसाइकलिंग की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी उसकी ये मैंने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
तो सबसे पहले जो है वो हम हर साल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एंड इन दैट कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट आर अलाउड टू सेंड द टेक्नोलॉजी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या रहता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आ गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन या प्रॉब्लम, देन उसमें आपका आ गया स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, देन व्हाट इज द नोबिलिटी बिहाइंड द प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी में नोबिलिटी क्या है, देन लास्ट वी यूज टू डू मार्केट एप्लीकेशंस, राइट। तो हर साल हम ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो 2024 में हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है 78 टेक्नोलॉजीज आफ्टर सॉर्टिंग रही थी, जो कि आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज की थी। अब उसके बाद क्या किया हमने, और इस कॉन्फ्रेंस में हमने सैप CIL है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट। आप विजिट भी कर सकते हैं वहाँ, और वहाँ की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं आप उनको भी, टेक्नोलॉजी क्या जो मशीनरी सेटअप है उनको आप देख सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे 7 मिनट के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजीज को पिच किया। कितने सेक्टर थे? 4, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, देन एनर्जी एनवायरनमेंट, एंड लास्ट में था हमारा इंजीनियरिंग, जो कि IoT, रोबोटिक्स और ML को कवर करता था। देन उसके बाद हमने क्या किया, वी आर 4-5 मैनेजर्स, तो हमने उन 78 टेक्नोलॉजीज को जो सेक्टर वाइज बांट लिया। मेरा मोस्ट प्रोमिसिंग सेक्टर था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो मैंने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में से 5 मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की। किस बेसिस के ऊपर? मुझे लगा कि पेट की तो डिमांड है ही है, राइट, प्लास्टिक की डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये टेक्नोलॉजी कुड बी हैव अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। तो मैंने वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की, देन उसका जो है वो बिजनेस सेंस निकाला, CRL, MRL सारी चीज़ें निकाली। देन उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा सॉर्टिंग करना शुरू की कि हाँ कि किन किन इंडस्ट्रीज में जो है वो ये टेक्नोलॉजी फिट बैठेगी। दैट मीन्स द मैक्सिमम प्लेयर्स, दैट मैक्सिमम एड्रेसेबल मार्केट इन इंडिया दैट आई कैन कैप्चर, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने 50 इंडस्ट्रीज का डाटा इकट्ठा किया, और उनको मैंने एक बड़ी सॉफ्ट ईमेल, बड़े क्रिस्प जैसे कि यहाँ की पेट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर सेल इन पंजाब यूनिवर्सिटी। देन मुझे 2 का रिस्पॉन्स आया। फिर मुझे लगा कि हाँ कि ये जो सैंपल है ये बड़ा लिमिटेड सा है, 50 से कुछ नहीं बनेगा। देन आई डिसाइडेड टू कवर द 100, देन 200, एंड अगेन द सेम रिस्पॉन्स, 2, 3, 4 का रिस्पॉन्स जो है मुझे आया। देन एट लास्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है ये, तो एटलीस्ट जो है वो 1000 का फिगर चाहिए। बट टास्क कितना लेंथी था क्योंकि मैनुअली करना पड़ा, राइट, एक एक इंडस्ट्री को सर्च करना, और उसमें हाई एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, ये सर वो निकल गया एक्चुअली। अच्छा, कोई इशू। अभी ठीक है साउंड? अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगा कि 1000 का फिगर चाहिए इसके लिए, तो सैंपल N क्या था मेरा? 1000। मैंने पेट रिसाइकलिंग के जो काम करते थे मैंने 1000 इंडस्ट्री सर्च की, उसमें टेक्सटाइल भी थी मिक्स थोड़ी सी, और बाकी जो रिसाइकलर के जो प्लेयर्स थे बेसिकली, जो कि जैसे बड़े नाम लेना चाहता हूं मैं, जैसे बिरला टेक्सटाइल हो गया, शक्ति प्लास्टिक्स हो गया, गणेशा इकोस्पेयर हो गया, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, राइट, बहुत मिलियन टन्स में जो है वो काम कर रहे हैं वो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने में। अब 1000 को, जब मैंने 1000 को पिच किया, वो वहां से मुझे 25 का रिस्पॉन्स आया। अब 25 का रिस्पॉन्स आना एक वाकई बहुत बड़ी बात थी कि हाँ कि 25, उनका इंटेंशन वो नहीं था कि दैट दे आर गोइंग टू परचेज इट या लाइसेंस करना चाहते हैं, या फिर देन अल्टीमेटली दे वांट टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, राइट। They are just want to know about the what is the know-how behind the technology. अभी उसका पता नहीं है कि हाँ कि वो बाकी रियल परचेजर होंगे या नहीं होंगे। देन दो 25 जो मेरे पास इंटरेस्ट आए थे, मैंने उन 25 की मीटिंग स्टार्ट कर दी 1 by 1। साइंटिस्ट जो है वो तकरीबन
5 to 10 मिनट्स के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को पिच करता था, एंड देन वी एक्चुअली हमारा ये मैंडेट भी है कि दैट वी ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, राइट। तो हम एक जो है वो उनको हैंड होल्ड भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, जो ताकि जो है वो एक परफेक्ट पिच तैयार हो सके, राइट। तो साइंटिस्ट ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो साइंटिस्ट का भी रोल बहुत अहम रहता है कि हाँ कि वो वाकई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, अरे कौन करेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे नखरे मारते हैं कि हाँ कि मेरा लेक्चर है, ये है, वो है, बट एक्चुअली दे डोंट वांट टू कमर्शलाइज, क्योंकि उनका पर्पस जो है वो कमर्शलाइजेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं बस कि हाँ ठीक है हो गया। ज़्यादा ट्रुथ तो नहीं बोल गया सर मैं? जी हाँ जी जी जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मीटिंग नहीं अरेंज करी, मैंने बहुत सारी के रिगार्डिंग करी है। तो मुझे लगा कि जब मैं आईआईटी रुड़की की मैं टेक्नोलॉजी, हमारा एवर की एमओए भी साइन है, मैंने उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो एक महीना फोन नहीं उठाते हैं। अब एक महीना फोन नहीं उठाओगे तो टेक्नोलॉजी तो वो सो ही रह जाएगी ना। गेटिंग माई पॉइंट। अब वो 2 साल तक वो टेक्नोलॉजी अगर पड़ी रही तो ना तो वो लैब के काम की, ना इंस्टीट्यूशन के काम की, और ना ही वो मार्केट के काम की। अब वो वैल्यू ऑफ डेथ तो वहीं, वो टेक्नोलॉजी वहीं खत्म होगी। ये मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि ये वो रिसेंट बात है, कोई 2 महीने पहले की। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली जो बहुत सारी क्वेरीज भी अरेंज होती आती थी इंडस्ट्रीज की ड्यूरिंग द मीटिंग। देन उसको फिर दोबारा फिर से जो है वो एड्रेस किया साइंटिस्ट ने, और देन अल्टीमेटली जो है वो 5 एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए। वहां से हमें पता लगा कि दे आर एक्चुअली क्या है, वो उनकी इंटेंशन है कि हाँ कि वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो 25,000 से शुरू हुआ, 25 ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया, एंड देन अल्टीमेटली क्या है 5 एनडीए साइन हुए। अब 5 का भी वैसे पक्का पता नहीं है कि हाँ कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। और इसमें जो है वो तकरीबन इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर 42 प्लस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई थी। 3 महीने लगे। प्रोफेसर साहब बैठे होते थे कि हाँ कि कर रहा है कुछ और न्यू एक्सपेरिमेंट है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तब तक नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद अपने को ही ऐसा हो जाता है कि नहीं वाकई में इतना, अब मान लो 42 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी, रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। सो हाउ डिफिकल्ट द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज, एंड दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। अब खैर हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि ताकि हम स्क्रैपिंग कर सकें, ताकि जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स डाले टेक्नोलॉजीज का, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाए मैचिंग जो उसके रिलेवेंट बिजनेस कर रही हैं, राइट। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। कुछ हद तक काम कर भी लिया है हमने, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस हैं जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं। देन फाइनली उन 5 जो एनडीए साइन हुए थे, उन 5 में से जो है वो 2 ने जिक्र किया कि हाँ कि हम आपका जो है वो पायलट स्केल प्लांट जो है वो देखना चाहते हैं, एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। देन दे विजिटेड देयर लैब्स, साइंटिस्ट ने जिसने बनाई थी टेक्नोलॉजी, एंड देन फाइनली जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है वो महाराष्ट्र के एक इंडस्ट्री को जो है वो ट्रांसफर हुई, एंड तकरीबन 15 लाख रुपीस जो है वो अमाउंट सेट हुआ बाय लुकिंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल्स। सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन फिर भी हमारा प्रोसेस बेसिकली इंडस्ट्री को जो लाने का है ना वो डिफिकल्ट रहता है बहुत। तो इंडस्ट्री अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत है। वो वही बात है कि टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो सपोर्ट तो चाहिए है डेवलप करने के लिए, ठीक है। टीआरएल 4 के बाद का ही कंसेप्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द रिसेंट टेक ट्रांसफर दैट वी हैव डन एंड द एक्सपेरिमेंट दैट वी गॉट सम आउटकम्स फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट एंड एफर्ट्स। सो दिस इज द रिवेन्यू बेस्ड मॉडल। यू कैन आल्सो, ये टेक्नोलॉजी थी जो कि इस तरीके का था उनका प्रोसीजर, एंड देन रिवेन्यू मॉडल भी था, उन्होंने 1000 स्केल के ऊपर भी डेवलप किया था, एंड 100 स्केल के ऊपर डिफरेंट रहता है, 1000 के ऊपर अलग रहता है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ डीएमटी कितना है, राइट। तो इस तरीके का जो है वो एक रिवेन्यू मॉडल जो है वो जरूर होना चाहिए। ये मैं इसलिए शो किया है क्योंकि बहुत सारे
साइंटिस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये पूछती हैं कि हाँ कि आपका जो पायलट स्केल प्लांट है वो 100 kg के ऊपर है, तो व्हाट इज एट दी 1000 स्केल, 1000 स्केल के ऊपर बताओ, क्योंकि इंडस्ट्री 1000 स्केल से नीचे बात ही नहीं करती है। और उतना बड़ा पायलट स्केल, इतना बड़ा रिएक्टर लगाने का पैसा ही नहीं है साइंटिस्ट के पास। तो वो दोनों के बीच में जो है वो एक मीडिएटर रोल जो प्ले करना पड़ता है, फिर वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, रिक्वेस्टें भी करनी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई फील सो कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे कई बार लगता होता है कि कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों को पिच कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। जी। तो नाउ आई थिंक लाइक दिस इज हम्म, द अदर साइड, हम्म, इट इज नॉट ऑल रोजी। एक टेक्नोलॉजी होने से आगे नहीं होता, जी वहाँ से जर्नी शुरू होती है एक्चुअली में, जी। है ना। यू एक्चुअली मैम की भी मैंने एक मीटिंग करवाई थी, एक दो करवाई थी, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैं ट्रांसफर नहीं करवा पाया ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। तो द इंडस्ट्री नेवर केम बैक टू अस। इसमें एक वजह है ना कि खाना पे वो रह गए। जी सर। अगर वो करते तो आपकी कितनी मतलब एनर्जी निकली उसके अंदर। जी एंड थैंक गॉड कि एक सक्सेसफुल स्टोरी आ गई, राइट इनफैक्ट सर। कई हो गई हैं आपके पास। जी एंड सर। लाइक यू आर फोकस्ड ओनली ऑन दिस, तब भी इतना रहता है। एंड एक साइंटिस्ट या जिसकी टेक्नोलॉजी है वो और कितने काम कर रहा होता है, रिसर्च भी कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहा है, और देन pitching out is difficult. So we need people like Virender and these centers like tech to do that part for us. उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये सेंटर तो है, जो टीचर है, जिसने जो इन्वेंटर है, उसकी भी डीप डिजायर होनी चाहिए कि मैंने टेक्नोलॉजी लेकर आना है। That's what is तो the main उसको भी thing. टाइम निकालना पड़ता है। 25 बार इसने मीटिंग्स करवाई हैं। हर 42 कि 42 टाइम्स तो 5-10 मिनट के लिए इन्वेंटर आया ना। आई वाज थिंकिंग कि आप इन्वेंटर को 5 मिनट की अपनी ना पीपीटी प्रेजेंटेशन या वीडियो बना ताकि उसके इतना टाइम ना लगे। तो शी शुड बी अराउंड कि अगर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हो। एक बार डेक बन जाए फिर तो इजी हो जाता है, फिर तो यस। डेक बनानी ही मुश्किल होती है, मोर लाइक दिस इज दैट आई थिंक दिस जी। टफेस्ट। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया है, बहुत सारे अदर एक्सपेरिमेंट्स अभी पेंडिंग है, तो प्रोफेसर मनु जी की गाइडेंस से जो है वो हम वो भी करेंगे। सॉरी जी फॉर इंटरप्शन। नहीं नहीं नहीं, आप करो बेटे तेरी। बट फॉर साइंटिस्ट जो टीचर्स यहाँ बैठते हैं, आप अपने डोमेन में ही रहिए। इस जो गैदरिंग का मैंने पहले कहा था कि सिर्फ आपको नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। अवेल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे टेक्नोलॉजी पास। ये है, एक सेंटर है जो सारा काम करेगा। अब आपको सेंटर की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, इसके बिना मुश्किल। ये नहीं कई बार डायरेक्ट बात कर रहे थे, इंडस्ट्री ले जाती है, पर एक सेंटर है जो कि फैसिलिटेट कर सकते हैं आप उस चीज़ को। और हर एक साइंटिस्ट के लिए मुश्किल है कोई इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करना। तो बस एक ही भी वो थोड़ा सा बस साइंटिस्ट हो कि डिज़ायरेबल हो कि मैंने लाइक बात ही ना कर साइंटिस्ट छोड़ यार, मैंने टेक्नोलॉजी बना ली, पेटेंट हो गया, प्रमोशन मिल गई, बस। So this is all about from my side, and so एनी thank you so much मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने you are हमें। honored नहीं नहीं to have आपका, you people and नहीं नहीं like so you can see how much effort goes into one tech transfer, and a person who is trained, equipped, and solely working in the area. So you could see the challenges that person is facing. So you can very well imagine अगर हम खुद ही सब कुछ करने निकलेंगे तो और कितना मुश्किल हो जाता है. So that's where partnership. So this is also a partnership, which we need to be open about such partnerships. है ना? तो वो 100% नहीं होता मेरा. मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि मैं चाहे 99% कर लूँ, लेकिन अगर 1% भी कोई और कर रहा है तो मेरा 100% तो उस 1% से बनता है ना. So I do need partners and I do need to partner out with people. Only then is it possible. And there are so many misses, तब एक सक्सेस मिलती है. So discourage नहीं होना misses के साथ. Wait for that success to come. So that can be your tipping point, है ना. So everyone have their own tipping points. वो बैलेंस जो है वो लास्ट पेग के साथ ही एकदम से नीचे जाता है. तो वो कब टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, और उससे पहले हिम्मत नहीं
आशीर्वाद तो इन गुरुओं का ही है जो, हाँ जी 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 हाँ जी 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 जी, मैंने और प्रतीक ने डिसाइड भी किया है कि हम आपकी टेक्नोलॉजी सारी लेंगे, तो हम उनके ऊपर काम करेंगे और ज़रूर। मुझे थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि आप फार्मास्यूटिकल थोड़ा मुझे, हाँ जी बिल्कुल नहीं कोई डरना है यार, आप लोग, मैं बैठा हूँ। जी सर जी सर जी। और मैं बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़नी है, वो है रिसर्च। चाहे किसी भी चीज़ में है, रिसर्च करना कभी मत छोड़ो, चाहे वो छोटे से पार्ट के ऊपर ही है। अगर रिसर्च छोड़ दोगे तो आपका दिमाग भी बिल्कुल ख़त्म है, समझो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को समझो, उसमें क्या क्या आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन में शामिल करो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू प्रोफेसर जी। हाँ, चाय ठीक है, मैंने देख ली। सो अभी वीरेंद्र जी ने आपके सामने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने एक जो पेट की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र किया, और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए वीरेंद्र जी ने 1000 इंडस्ट्री को कांटेक्ट किया। जाहिर सी बात है कि 1000 इंडस्ट्री का डेटा पहले तैयार किया, और उसमें 1000 इंडस्ट्री का डाटा तैयार करने में इनको आराम से, मेरे को लगता है कोई 1 महीना तो लग ही गया होगा, है ना। तकरीबन 1 महीना लग गया इनको। फिर उसके बाद बताया इन्होंने कि किस तरह 42 मीटिंग्स हुई। दुनिया को जो दिखता है, दुनिया को तो दिखता है वो फाइनल रिजल्ट कि एक टेक ट्रांसफ़र हुआ, और उस टेक ट्रांसफ़र के पीछे बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो 15 लाख रुपए में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, और जिसमें से कि कितने परसेंट हमें मिला? 10% जो है हमने अपना उसमें कमीशन लिया। तो हम एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डीलर तो प्लॉट बेचता है ना, हम पेटेंट्स को बेचते हैं, और उसमें जब बिकता है पेटेंट तो उसका फिर 10वां हिस्सा हम ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा MOA साइन हुआ है IIT रुड़की के साथ। उनकी टेक्नोलॉजीज़ को आगे ट्रांसफ़र करने का हमने जिम्मा लिया है, और अगर कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होगी तो उसका 10वां हिस्सा, दसवंध हमें मिल जाएगा। तो अब मैं, हाँ जी बेटे, सॉरी मैं बीच में बोलता हूँ, बीइंग ए टीचर मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट था। पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है बेटे। IIT रुड़की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट, IIT जिनके अपने सेल्स हैं बेटे, टेक ट्रांसफर्स के। सो हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी में बैठकर उनकी टेक्नोलॉजीज बेचेंगे। सो लुक एट दैट, IIT कानपुर की भी ये सारा काम वनु एंड हिज टीम, फिर मैं तो ऊपर वैसे बैठा हूँ, बट ये लोग इतना काम कर रहे हैं कि भी हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर वेरी प्राउड कि हम IIT की टेक्नोलॉजी बेच, CSIR की भी हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। सो बस जस्ट टू से, अब इंडिया में
गवर्नमेंट लेवल पे भी मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें अप्रोच कर रही है किसी और चीज़ों के लिए, लेक्चर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए, हमें कोई नॉलेज नहीं। और ये जो बच्चे हैं वरिंदर वगैरह है ना बेटे, ये एक्सपर्ट नहीं थे, ये भी आप जैसे साइंटिस्ट हैं, ये भी आप जैसे साइंटिस्ट थे। और यही की भी थप्पड़ मार मार के खा के ना तब कैसे हुए, मतलब खाए नहीं इन्होंने, मतलब इतनी मेहनत की है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, इन्होंने अपनी मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी यहाँ तक पहुँचे। ओके, कोर्स वर्क कोई नहीं है इसके लिए। सो सीखना और फिर उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हुए हमारे। मनोज जी प्लीज। हाँ जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है उसके डीएसटी द्वारा अपॉइंटेड मेंटर हैं प्रोफेसर रुपिंदर तिवारी जी, और उनकी मेंटरशिप में ही हम सारा काम करते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ अपनी एग्जांपल्स शेयर करूंगा कि हमने कैसे मार्केट को थोड़ा असेस किया। वीरेंद्र जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मार्केट को असेस करना चाहिए और कैसे कमर्शलाइजेशन पोटेंशियल देखना चाहिए, पर एक्चुअल में हमने अपने लाइफ में कैसे किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले हमने एक डिवाइस तैयार किया जिसका नाम है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। ये डिवाइस एक वेंटिलेटर की तरह है। वेंटिलेटर का मतलब थोड़ा लोअर वेंटिलेटर, आप में से कुछ जानते होंगे, अम्बू बैग होता है ना, एक गुब्बारा होता है, उसको ऑटोमेट किया है। तो उसको ऑटोमेट करने का डिवाइस में पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट पीजीआई का और एक साइंटिस्ट आईआईटी रोपड़ का, तो 4 साल काम किया। तो फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस बना। उसमें कोई 1 करोड़ रुपए तक का खर्च हो गया, डीएसटी ने पैसा दिया था, और पेटेंट अप्लाई किया, पेटेंट मिल भी गया। फिर उसके बाद इस डिवाइस को 33 पेशेंट्स के ऊपर सक्सेसफुली ट्राई किया। अब ये सक्सेसफुली ट्राई भी हो गया। अब उसके बाद आप थोड़ा सा कल्पना करके देखें कि जो पीजीआई का डॉक्टर है वो तो अपनी डॉक्टरी करेगा, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो अपना क्लासेस लेता रहेगा, उसी प्रकार आईआईटी रोपड़ का भी। तो फिर अब ये सोचा गया कि कैसे इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने अपने लोकल इकोसिस्टम में रीच आउट किया थ्रू फ़ोन, थ्रू ईमेल, और लोकल 2 इंडस्ट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया कि हम इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हैं, और 4-4 लाख रुपए में हमने ये टेक्नोलॉजी 2 इंडस्ट्रीज़ को दे दी, लाइसेंस दे दिया 4-4 लाख रुपए। अब उन्होंने लाइसेंस तो ले लिया, पर अब 4 साल हो गए, उन्होंने आगे स्केल अप नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी तो चली गई, ट्रांसफ़र भी होगी, पर उसके बाद भी वो स्केल अप नहीं हुई। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हमने वो 4-4 लाख रुपया कैसे सोचा कि किस तरह से लेना है, 4 लाख ही क्यों लेना है। तो उसका तो जो हमने किया, हमने तो ये सोचा कि 4 हम साइंटिस्ट हैं, सबके हिस्से 1-1 लाख रुपया आ जाएगा, तो हमने 4 लाख उस तरह से डिसाइड किया। अब पॉइंट ये आता है कि इतनी मेहनत के बाद इतने रिसोर्सेज भी लग गए, तो पर टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी नहीं। सो उसका आंसर है जो वीरेंद्र जी ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन में दिया, कि हमें इसका एनालाइज करना चाहिए कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है कितनी, सैम कितना है, सॉम कितना है। उससे क्लैरिटी आती है कि इसमें बिजनेस है कितना, धंधा कितना है इसमें। तो उस प्रकार से हमने इसमें अभी तक स्टडी की नहीं है, बट आई थिंक अब आने वाले टाइम में हमें उस तरह से उसकी स्टडी करके राइट पार्टनर को भी टेक्नोलॉजी देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी, ऐसी छोटी कंपनी को दे दी जो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है, टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है, और आगे उसके अराउंड बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रही है, तो टेक्नोलॉजी किल भी हो जाएगी। तो अब ये दूसरी टेक्नोलॉजी है सीएनसी मिलिंग मशीन। तो ये सीएनसी मिलिंग मशीन जो है, ये वुड एनग्रेविंग मशीन है। तो इस पे मेरा जो पीएचडी स्टूडेंट है वो काम कर रहा था। तो
उसने अपने पीएचडी टॉपिक के तौर पे इस मशीन को डेवलप किया, और ये मशीन इस प्रकार की है कि उसके इस मशीन की गैंट्री के ऊपर अगर हम अपना चाय का कप रखेंगे ना तो वो बिल्कुल स्टेबल रहती है मशीन। तो दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस मशीन। फिर इस मशीन को यूआईटी के ही एक स्टूडेंट ने इसके अराउंड स्टार्टअप क्रिएट किया, और फिर उस स्टार्टअप को, वो जो मशीन है वो राजपुरा में उन्होंने अपनी कंपनी भी लगा ली और एक क्लाइंट को बेच भी दी मशीन। पहली मशीन 3 लाख रुपए में बिकी। इन द मीन टाइम जब उसके जो स्टूडेंट था जिसने वो कंपनी बनाई थी, उसके जब मम्मी पापा आए, खास करके जब उसके मामा आए और उन्होंने देखा कि कैसे उनका जो बच्चा है वो वेल्डिंग भी कर रहा है, कैसे उसका वेट लॉस हो गया है, कमज़ोर हो गया है, कैसे उसके हाथों में ग्रीस लगी है, तो उनकी तरफ से एक बड़ा प्रेशर आया कि भाई अब आप इसको बंद करो और आप अपना आगे पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो वो जो कंपनी थी फाइनेमिक्स, फिर वो बंद हो गई। गिवन द फैक्ट कि वो 6 महीने के अंदर अंदर ही अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको वो कमर्शलाइज कर पाए थे। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जब हम किसी टेक्नोलॉजी को आगे उसका कमर्शलाइजेशन पोटेंशियल उसका असेस करते हैं और उसको कमर्शलाइजेशन पर लेकर जाते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि मौका आने पे कागज बोलेगा। तो जब उस बच्चे ने एक दिन आके मेरे को बोला कि सर मामा मेरा मना कर रहे हैं और मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये कोई प्रोफेशनल आंसर है? कोई मामा मना कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी कोई बात बनती है। ये कोई, अगर आप ये बोलते कि सर प्रोडक्ट नहीं अच्छा ये, या ये बोलते कि मार्केट नहीं है इस प्रोडक्ट की, या ये बोलते कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या ये बोलते कि ये मेरे से बन नहीं रहा, तो ये तो कुछ इनमें कुछ वैल्यू भी तो होती, कुछ आंसर में कुछ दम तो होता। अब आप तो कह रहे हो मामा नहीं मान रहे, ये तो कोई अच्छा आंसर नहीं है। अब उस मौके पे हमने फिर अपना वो जो एग्रीमेंट था उसको खोला, बट एग्रीमेंट इस मामले में बड़ा शांत था, उसने कुछ नहीं लिखा हुआ था उसमें। तो मौका आने पे कागज ने बोलना होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इस प्रकार का काम आगे बढ़ाते हैं तो अच्छे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, एंड वी शुड बी एबल टू इमेजिन एंड विजुलाइज ऑल पॉसिबिलिटीज़, और उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डॉक्यूमेंट कर दें। तो ये वही CNC मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। और एक हमने प्रोजेक्ट किया था ओशनरिंग कंपनी के साथ। इस ओशनरिंग कंपनी में आप देख रहे हैं कि ये आपको तारें नज़र आ रही हैं, और ये जो तारें हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड्स की तरह होती हैं, और कंपनी समुद्र के नीचे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर नीचे जाके ऑयल को एक्सप्लोर करती है, जिस कंपनी के लिए हमने काम किया ओशनरिंग। तो जिस तार से उनका रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, जिसको बोलते हैं ROV, जिससे वो बंधा होता है तार से, उस तार को रेगुलरली उसकी हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए फिर कंपनी से हमने बातचीत की, तो उन्होंने हमें एंगेज किया फॉर डेवलपिंग अ आर्मर वायर टेस्टर, जो कि पीरियडिकली उस वायर की हेल्थ बताता रहे कि कहीं से वो टूट तो नहीं रही, कहीं से कमज़ोर तो नहीं हो रही। तो इसमें भी जब हमने इसको नेगोशिएट किया इस प्रोजेक्ट को, तो सही सिचुएशन तो वही होती कि हम इसका पहले पूरी टाइम निकालते कि है कितनी मार्केट, कितनी कंपनियां हैं जो कि समुद्र के नीचे से ऑयल एक्सप्लोर कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो वीरेंद्र जी ने बताया सैमसॉम, वो सारी चीज़ें निकाल के फिर हमारे पास कुछ डाटा होता कि भाई इतना है। उस तरीके से तो हम नहीं गए, प्रैक्टिकली जिस तरीके से गए वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो हमसे कंपनी ने पूछा कि भाई कितने में आप ये हमारे लिए डिवाइस बना दोगे।
तो अब कोई फिक्र ध्यान में उस तरह से कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो बोला कि 1 लाख रुपए में बना देंगे। 1 लाख रुपए में बना दिए। वो कंपनी बड़ी खुश थी, उन्होंने जो है स्टैम्प पेपर पे हमसे लिखवा लिया कि 1 लाख रुपए में बना के देंगे। बोलते कितने टाइम में बना के दोगे? हमने कहा 12 महीने में बनाएंगे। चलो, वो भी लिखवा लिया। अब जब ये सारा रिटर्न में आ गया, अब फिर 1 महीने बाद वो उनके रिमाइंडर्स आने लग गए कि भाई बताओ, आपने ये बना के देना है और ये माइलस्टोन्स हैं, इसको कंप्लीट करो। तो अब फिर हमने दिन रात उसमें मेहनत की, काम किया, आर्मर वायर टेस्टर बनाया, डिप्लॉय किया, अच्छी तरह से सब कुछ चल गया। फिर बीच में, अच्छा, और उन्होंने ये भी बात की थी बीच में कि भी आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका पेटेंट फाइल होगा और हम आपसे पेटेंट के राइट्स पहले से ही ले लेंगे, आपको 50,000 रुपये देंगे पेटेंट के। हमने कहा ठीक है, 50,000 रुपये। उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। 50,000 रुपये पेटेंट के दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 लाख वो 1.5 लाख की कमाई होगी। तो 50,000 में वो सारा पेटेंट भी दे दिया। 1 महीने 1 साल पूरा काम किया। तो बाद में हम ये सोच रहे थे कि भी इतना सारा हमने काम किया, हमारे हाथ तो कुछ लगा नहीं इतना खास। फिर वही कंपनी दोबारा से हमारे को अप्रोच किया, उस कंपनी ने। तो वो कहते कि भाई हम ना आपको अब अपना CSR मनी देना चाह रहे हैं। और उन्होंने फिर हमें 1 करोड़ रुपए का CSR दिया। और उस 1 करोड़ के CSR से अब हमने एक बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना यहाँ पर टाउन सेक्टर में, उसके साथ ही बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी है। उसमें इन दैट फैसिलिटी बैटरी ऑफ अननोन केमिस्ट्री कैन बी टेस्टेड। अननोन केमिस्ट्री की बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं -40 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक और 98% ह्यूमिडिटी तक। तो अब मैं बिगर पिक्चर देखता हूँ तो मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ ठीक है, हमें तो अच्छा ही पड़ गया। इतनी अच्छी लैब भी डेवलप हो रही है। और अब उस लैब में एक जो रिसेंट हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन लेड एसिड बैटरी। पंजाब में ही 70 ऐसे यूनिट्स हैं जो लेड एसिड बैटरी बनाते हैं। और वो सारे जो लेड एसिड बैटरी बनाते हैं, उनके 4 मेन इश्यूज़ हैं कि भी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ जाए, बैटरी की लाइफ बढ़ जाए और फास्ट चार्जिंग हो जाए। और उनके पास बड़ी हैरानी की बात है, सबके पास सेम रेसिपी है केमिस्ट्री की कि कैसे उस बैटरी को तैयार करना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि भाई उस मार्केट, अब हमने कुछ लिटरेचर सर्वे किया तो ध्यान में आया कि भाई जर्नल्स में तो कितनी ही रेसिपीज छपी पड़ी हैं। पंजाब में जो ये 2-3 रेसिपीज ही चल रही हैं, पर जर्नल्स में तो कितनी ही 25, 30, 35, 40 रेसिपीज हैं जो जर्नल्स में रिपोर्टेड है। कोई कह रहा है कि CNT से कर लो, कोई कह रहा है कि एक्टिव कार्बन से कर लो, कोई कार्बन ब्लैक से कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर अब मार्केट रेडीनेस को कैसे देखें कि यार ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं जो मार्केट में है, इसके लिए मार्केट रेडी भी है कि नहीं। तो फिर हमने वो सारा डाटा जो इंटरनेशनल जर्नल्स में था उसकी एक PPT तैयार कर ली कि भाई रेसिपी नंबर 1, रेसिपी नंबर 2, रेसिपी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 रेसिपीज तैयार कर ली। और फिर हम लुधियाना गए और सारे जो बैटरी वाले हैं उनको बुला लिया कि आ जाओ, हम आपको नई रेसिपी बताएंगे कैसे बैटरी नई बनती है। तो लुधियाना में जाके सारी बैटरी वालों को बुला लिया। और जो अब इमेजिन आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और मैकेनिकल बैकग्राउंड में हूँ और उनको मैं केमिस्ट्री की रेसिपीज़ उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री की आप रेसिपी इस्तेमाल करो, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और फास्ट चार्जिंग। तो वर्सेटिलिटी मैम वो हर एक को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कॉपी पेस्ट है, इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश्ड है डाटा सारा। तो उसमें फिर हमने अब उसकी रेडीनेस, फिर हमें तो समझ एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, मार्केट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी लुकिंग फॉर सच बेटर रेसिपीज। तो हमने कहा कि अब बताओ जो जो हमारे साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं तो बताओ, हम आपके साथ मिलके इन रेसिपीज को टेस्ट करना चाहते हैं।
इनके साथ आपके ये रेसिपीज़ आपके टेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सामने आए। अब आप कल्पना करके देखें, इसके माध्यम से हमने जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है उसके शॉप फ्लोर को ही अपनी लैब बना दिया। क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से क्या लिया, हमने यहाँ से हमारे नैनो साइंस में है डॉक्टर रिचा, तो उनसे हमने कुछ नैनो ट्यूब्स ली, उन्होंने हमें CNT डिस्पर्शन बना के दी। फिर वो CNT डिस्पर्शन, सिर्फ CNT डिस्पर्शन और कुछ नहीं, और कोई इक्विपमेंट नहीं ऐसा। CNT डिस्पर्शन फिर हमने बैटरी मैन्युफैक्चरर को दी कि भाई अब आप जब आप अपनी बैटरी बना रहे हो तो एक पेस्ट होता है जो इलेक्ट्रोड्स पे लगता है, उस पेस्ट में इसको डाल दो, मिक्स कर दो। मिक्स कर दिया उन्होंने उस पर, और जो बैटरी बन गई उसको हमने कह दिया ये तो नई हमारी बैटरी है। फिर वो बैटरी उसने हमें दी, एक पुरानी दी, और दोनों को फिर हमने अपनी बैटरी लैब में टेस्ट किया, और हैरान हो गए देख के कि जब हमने बैटरी लैब में उसको टेस्ट किया, हमें 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बैटरी की मिली। और 1.5 से 2 गुना बैटरी की ज़्यादा, फिर हमें और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हमारा ये सारा जो तरीका है ये शायद ठीक ही है। तो फिर एक वो जो स्टूडेंट इस पे काम कर रहा था उसने अपनी स्टार्टअप उस पर खोल दिया, उसको बोलना नहीं पड़ा। स्टार्टअप एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, इसको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस मोड में हैं, उस तरह से हैं, तो अपने आप ही हम देखेंगे अपने आप ही स्टार्टअप निकल गया। क्योंकि वो स्टार्टअप में क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्टअप में 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान, फंड। ये 4 चीज़ें मिक्स कर दो, स्टार्टअप बन गया। टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान, फंड। अब उस बच्चे ने देखा कि भाई मैंने अपना एमटेक का थीसिस किया, टेक्नोलॉजी तो बन गई, और इस टेक्नोलॉजी की मार्केट रेडीनेस नज़र आ रही है, मार्केट रेडी लग रही है, वो जो CRL, MRL जो कुछ बताया उसमें उन पैरामीटर्स पे खड़ी उतर रही है। टीम उसने देखा कि हाँ भाई मेरे साथ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है, उसके मैनेजर्स हैं। बिजनेस प्लान भी बनाना शुरू किया। हमारे जो एक स्टार्टअप प्रोग्राम चलता है क्रिएटिव स्टार्टअप, उसमें उसने एनरोल किया, तो बिजनेस प्लान भी बनाने शुरू कर दिया। तो अब वो अपनी स्टार्टअप कंपनी को चला रहा है। अब उसको उसी कंपनी को अब एक और कंपनी है तलवाड़ा में, दीपक इंटरनेशनल, अब उनके साथ वो नेगोशिएट कर रहा है फॉर इम्प्रूविंग देयर बैटरीज। तो ये वो जो आर्मर वायर टेस्टर है उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं ये। सो मेरे ख्याल से आई थिंक अब कुछ और ओपन हाउस डिस्कशंस हो जाएं। हमारे साथ प्रोफेसर उपेंद्र तिवारी जी भी हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के, और कुछ आपके डिस्कशन। प्रोफेसर इंदुपाल कौर जो कि नहीं सर, प्रैक्टिकली एंड थियोरिकल। और हमारे साथ पेटेंट क्वीन ऑफ इंडिया प्रोफेसर इंदुपाल कौर भी हैं। तो अब आप तो बड़े फॉर्चुनेट हो बेटे जो ऐसे प्रोग्राम के पास। और क्या इंस्पिरेशन चाहिए आपको? क्वेश्चंस की बौछार करो सर पे, और हम शो क्या कर सकते हैं, ये कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना? एक क्वेश्चन आया है हाँ प्लीज। आपने 10 रेसिपीज शॉर्टलिस्ट करी बेटे कैपिटल क्लाउड आपने 10 रेसिपीज शॉर्टलिस्ट करी थी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपने 10 की 10 ट्राई की, वो 10 की 10 सारी फुलफिल हुई या उसमें से आपकी कोई एक सेलेक्ट हुई? हाँ, हमने देखा कि इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा थी रेसिपीज़ जो हमें निकली और हमें लगा अच्छी है, प्रॉमिसिंग है। अब उस रेसिपीज़ को उनको बनाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, है ना, लैब्स भी चाहिए, नो हाउ भी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी प्रॉमिसिंग रेसिपी निकल कर आ रही थी कार्बन फोम की।
पर वो कार्बन फोम को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए था उसमें 1000 डिग्री टेम्परेचर का कुछ वो ओवन भी चाहिए था और बीच में और प्रोसेसेस थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे थे। यहाँ केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी बातचीत की तो वो चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने कोई ऐसी एक प्रॉमिसिंग रेसिपी हमें नज़र आई CNT बेस्ड, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट हमें लगा और उसके नो हाउ भी नज़र आ गई। रिचा मैम मिल गए जो कहते हैं हाँ मैं डिस्पर्शन तैयार कर सकती हूँ। फिर हमने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो एक ही टेस्ट किया अभी तक। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे दो अच्छे लेक्चर्स हुए तो एक अंदर से आवाज होती है ना कि बच्चे जरूर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये अच्छे लगे हैं, बट एक तो झिझक सी होती है ना कि यार मैंने सवाल पूछना है, बेटा सब इंडियंस में होती है, सब में होती है, पर हमें उसमें से निकलना यू पीपल यंग ब्लड बेटे आप में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट, जैसा भी सवाल हो बेटे, जैसा भी सवाल हो आपका, तो पर एटलीस्ट इंजीनियरिंग वालों को हेल्प करता रहा है, तो अब इतने टेक्नोलॉजीज ले आओ कि सब लोग लग जाए हमारे। आज मुझे लगा कि भी थोड़ा सा बायोलॉजी वालों को है कि इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, सो विल टेक केयर ऑफ दैट, विल टेक केयर ऑफ दैट। फॉर श्योर प्लीज। Sir, how can we make a balance between these three CRL, MRL? Suppose अगर सर CRL में हमारा स्केल है लेवल है 4 और कोई अनदर CRL या MRL में हमारा लेवल कम है, तो हम एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मतलब ऑन द स्पॉट और टॉप नॉच है? टॉप नॉच ऐसा है ना कि आपका टीयर तो हाई है, राइट, लेकिन MRL और CRL ये अगर मान लो कि कम है, ठीक, ऐसा नहीं है कि हाँ कि तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तब भी केस वैलिड है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें रिवेन्यू जनरेट ना हुआ, राइट। ट्रांसफर इज अ डिफरेंट केस, लेकिन हमारा जो है वो टारगेट क्या है, दैट मीन्स सक्सेसफुल रिवेन्यू, वहाँ से कुछ आ रहा हो तब हमारा जो है वो अल्टीमेटली जो है वो मतलब ऐसा कुछ नहीं वैल्यू। है कि तीनों में एक पर्टिकुलर स्कोर होना चाहिए तब हमारा ऐसा स्कोर, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स भी हैं, मैट्रिक्स डेवलप होती है, इनको तीनों को जो है वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली अलाइन किया जाता है। मैंने वो डिस्प्ले नहीं किया था, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड डेफिनेटली गेट बैक टू यू अगर आपको उस तरीके का चाहिए। I think I can also answer a part of this question for all of you. तो मुझे लगता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें टैम सोम देखना चाहिए। हमें यू स्टार्ट विद, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक पब्लिकेशन सर्च करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें पेटेंट सर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं इस प्रोडक्ट का, और उससे भी ज़्यादा जो मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हूँ क्या वो स्केलेबल है, क्या वो कमर्शलाइज हो सकती है। सो कीप इट सिंपल, थिंक, आज ही ये सोचना शुरू करो कि अगर इस प्रोडक्ट को स्केल अप होना है तो इंडस्ट्री के पास क्या ऐसा वाला इक्विपमेंट है। मैं तो अल्ट्रासोनिकेटर से बनाई जा रही हूँ, है ना, और वहाँ कैसे होगा, ठीक है, या मैं इतना कोई हाई फाई इक्विपमेंट ले रही हूँ। अब लाइपोसोम्स में क्या है, लाइपोसोम वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, लेकिन एंड कितने साल पहले लॉन्च हुई, लेकिन क्या हुआ, 2 या 3 प्रोडक्ट्स ही आ पाए। क्यों? क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका है वो बैच रिएक्शन है और उसमें फिल्म हाइड्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एट वन। क्या हो गया था जब अपने पास कोविड के साथ साथ जो आपकी फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गई, तो सडनली हम हैंडल ही नहीं कर पाए, बिकॉज एट अ सिंगल टाइम एक बैच ही लिमिटेड बन पाता है एम्फोटेरेसिन बी का। तो वो क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी थी। सो ये सब चीज़ें हमें पहले से सोचनी है बिफोर वी स्टार्ट वेंचरिंग और डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी और अ प्रोडक्ट। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उसी तरह से मार्केट गैप भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी हम उसको आगे लेके जा पाएंगे, तभी वो कमर्शलाइजेबल बनेगी। सो ये सब दूरअंदेशी से सोच के तब करना है। आई हैव सो मेनी ऑफ माई PhD स्टूडेंट्स, तो जब ये कोई मेरे पास लेके आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ ये बनेगा कैसे, वहाँ कैसे जाएगा, इंडस्ट्री में कौन बनाएगा इसको।
सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. नेचर जो है ना वो सिंपल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है. तो जवाब भी सिस्टमेटिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और सिंपल हैं. सिर्फ हमें ढूंढना है सही जगह पे, राइट. When he spoke about this ना foam जो सर ने बताया, तो टू ऐड टू व्हाट यू सेड ना, इंडस्ट्री क्या होता, जैसे पहले इफ़ यू रिमेंबर शुगर कोटिंग, जेम्स भी खाते थे, शुगर कोटेड टैबलेट्स बहुत पॉपुलर थी. ब्रूफेन इफ़ यू सी अर्लियर इट वाज शुगर कोटेड, but it was so time consuming, you know, it takes like full shift of the operator. So gradually they moved to film coating. फिल्म कोटिंग भी कैसे नॉन एक्वेस होती थी पहले, यू नो, नॉन एक्वेस. हैजार्डस कितने होते हैं आप सोचो. आप अगर सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई आई सेड राइट इन द बिगनिंग, सॉल्वेंट है ना, हैजार्डस, सेफ्टी, फ्लेमेबल, जितना कम यू कैन यूज़ इट, बिकॉज अदरवाइज वी हैव टू इन द प्लांट क्या करना पड़ता है, सब फ्लेम प्रूफ फिटिंग्स. We have to have a flame proof lab, you know, I mean every single switch and सब flame proof होना पड़ता है. So we do have products like that. I'm not saying we cannot, you know, we can't do everything aqueous, but we have separate rooms for flame proof. पूरा industry तो नहीं कर सकते हैं. One more example I want to give, one hyoscine hydrobromide, one tablet was there, small tablet, and we got this project. हमको बोला गया R&D में आप बनाओ. Fine, we saw first thing we read is the MSDS, Material Safety Data Sheet, which we overlook many times. उसमें हमने पढ़ा कि वो API को, you know, you have to फ्लोर को, it is very you know, in conduction, some sir को पता होगा, like mechanical, I'm not an engineer, but it gets, you know, electricity, some conduction takes place and dust explosion. मैंने जो बताया स्लाइड में MCC, microcrystalline cellulose. So that when we saw, we said okay, हम हमारे लैब का R&D का तो करा देंगे, conduction whatever something we had to put under the floor. What about the plant? Can the commercially you can do production unit में कितना खर्चा आएगा? You know, right from blending to this, we cancelled. It got killed. तो वो जो J or whatever it is, you know, value of death आ गया उसी टाइम में. But do the, it's okay to kill a product right in the beginning, you know. But आगे जाके अगर करें, your resources, time, money, everything is wasted. TRL 8 तो बना लिया, लेकिन वो है ही नहीं, उसकी CRL नहीं है, MRL नहीं है. So identify in the beginning. It's okay to kill the project, but and in the very beginning. तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा. टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर एक बहुत एंथुजियास्टिक प्रोग्राम एक लेकर आ रहा है, क्रिएट योर स्टार्टअप. इसकी रजिस्ट्रेशंस इस महीने के 30 तारीख तक हैं और इसमें हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पार्टनर किया है. सो दिस इज़ इन पार्टनरशिप विद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. और इसमें अगले 6 महीने में सिर्फ 12 सेशंस होने हैं और हर एक सेशन 2-2 घंटे का होगा और हर एक सेशन हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन भी आ सकते हैं आप या ऑफलाइन भी आ सकते हैं. 6 महीने में सिर्फ 12 बार सेशंस होंगे और बीच में असाइनमेंट्स दी जाएंगी. और इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. जो असाइनमेंट सक्सेसफुली करेगा वो फिर मॉड्यूल 2 में जा पाएगा और जो मॉड्यूल 2 की असाइनमेंट करेगा वो मॉड्यूल 3 में जाएगा. फिर मॉड्यूल 3 की असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर जो रियल इन्वेस्टर है उसके सामने आपको मौका दिया जाएगा फॉर पिचिंग योर स्टार्टअप अगेंस्ट रियल इन्वेस्टर्स फॉर फंडिंग अगेंस्ट प्राइवेट इक्विटी. ये वाला सेकंड सीज़न चल रहा है. फर्स्ट सीज़न कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट सीज़न में जैसे कि प्रोफेसर इंदुपाल कौर ने बताया, हमने 16 स्टार्टअप्स क्रिएट किए और आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि उन 16 स्टार्टअप्स में से 2 स्टार्टअप्स को हमने 3-3 लाख रुपया पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दिलवाया है, 2 को फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से दिलवाया है और 1 को प्राइवेट इक्विटी फंडिंग से दिलवाया. तो वी आर एबल टू रेज फंड्स ऑल्सो फॉर द स्टार्टअप्स. तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप भी इस क्रिएट योर स्टार्टअप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और इसके लिए अगर आपने कांटेक्ट करना है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर तिवारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र से कर सकते हैं, डॉक्टर अजय शर्मा जी बैठे हैं
अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी बैठे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंजीनियर प्रतीक साहनी जी, वो भी यहीं पर हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एंथुजियास्टिक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। जो मॉड्यूल 1 की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 1000 रुपीज़ प्लस GST है। और ये पूरे इकोसिस्टम में आप देखेंगे सबसे सस्ता प्रोग्राम है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। और आई कैन नॉट लाइक दैट डिस्क्लोज पब्लिकली, बट मुझे पूरा विश्वास है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी जो स्कीम्स हैं इस स्टार्टअप क्रिएट योर स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको उपलब्ध भी होंगी, वो उसका आप लाभान्वित होंगे, उससे लाभप्रद होगा आपके लिए। और प्रोफेसर तिवारी, आप कहना चाहते हैं कुछ? बेटे आपने सब बता दिया। आई जस्ट वांट टू ऐड, इसकी जो टोटल चार्जेस हैं बेटे, देयर विल बी अराउंड 5000 रुपीज़, विच इज़ द चीपेस्ट इन इंडिया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कुछ गवर्नमेंट भी हमें फंड्स दे रही है। 5000 भी जो आपसे ले रहे हैं बेटे, वो 3 स्टेजेस में हैं। जैसे मॉड्यूल 1 करेंगे उसके लिए क्लोज टू 1100 है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मॉड्यूल 1 के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। और ये हमारे पास भी है कि वी डोंट वांट कि भी हम जितने हमारे पास बच्चे हैं हमने सबको ऊपर लेके जाना है। हमारा मकसद पैसे लेना नहीं है बेटे। तो हम आपको भी इवेल्यूट करेंगे, जिनमें हमें लगेगा कि भी इनका ज़रा मुश्किल लग रहा है तो हम उनको विल से थैंक यू, आगे नहीं जा सकते आप, राइट। फिर जो मॉड्यूल 2 में आएंगे इट्स अबाउट 2000 रुपीज़। उसके बाद भी उनकी असेसमेंट होगी। सम ऑफ देम विल गो टू मॉड्यूल 3। ओके, सो पढ़ाने वाले जो लोग जो हैं बेटे, कुछ टॉपिक्स ये लेंगे, मगर IIM से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो IIT वाले लोग हैं रिलेटेड टू दीज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के, जो मिशन पंजाब के जो चेयरमैन है, पहला लेक्चर वो डिलीवर करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सपीरियंस पीपल जो स्टार्टअप्स हैं जिनके सक्सेसफुल, जो उनके CEOs हैं, वो लेक्चर देंगे बेटे आपको। और ये लेक्चर्स का जो टाइम है आपसे क्लैश बिल्कुल नहीं करेगा। दे विल बी इधर ऑन वीकेंड्स और ऑन हॉलीडेज, और आफ्टर दी जो हमने रखा नहीं है अभी तक कि वीकडेज में आफ्टर 5 o'clock। सो वी वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, ये एक तो आपके CV के लिए अच्छा होगा बेटे। मे नॉट बी आपके पास अभी कोई टेक्नोलॉजी दिमाग में कुछ हो, बट इट विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू कि भाई ये चीज़ क्या है, स्टार्टअप चीज़ क्या है। नाउ जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर एस्पेक्ट, आप लोगों ने अगर M फार्मा भी करनी है या मास्टर्स में अपनी रिसर्च करनी है बेटे, गिव इट ए थॉट, जो आपका आइडिया है, टॉक टू इंडस्ट्री, उनको क्या चाहिए, ब्रिंग दैट प्रॉब्लम टू योर मेंटोर्स, टू प्रोफेसर्स, उसके ऊपर काम कीजिए बेटे। तो इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्री से प्रॉब्लम आती है तो इंडस्ट्री ने अब्जॉर्व करनी है, आपको ये सारा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑल दे वांट इज ए आपकी R&D, आपका उन्होंने आइडिया दे दिया, यू विल डू इट। फिर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं कि IP उनको नहीं देना, पहले बात कर सकते हो कि हमारा आइडिया लग रहा है, सो हम भी इसमें आपके जो होंगे कि विल बी वन ऑफ द इन्वेंटर्स। ओके, सो ये बातें हो सकती हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर बैठा, ये सब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू मार्केट जाती है। आपने नहीं करना, आप ये काम कोई नहीं कर सकता बेटे। दैट्स वाई वी हैव दिस टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर्स, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी R&D कीजिए, एंड बट यू शुड बी नोइंग कि एक तमाशा सरा है क्या बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Still you have time for any other questions. अभी सब टेक के लोग हमारे पास बैठे हुए हैं. We have three managers and the director and the person behind the technology enabling center. Any questions? Any quick questions? Oscar? No, sorry. Sir, we have seen many success stories in tech, but I wanted to know what are the failure stories and the main reasons behind failure story. So, as budding entrepreneurs, so we shouldn't commit these mistakes from the very beginning. दो चार जो आपको लगता है कि बड़ी glaring है, that is a common mistake है,
आई वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चंस मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एंड एवरीबडी वांट्स टू नो द सक्सेसेस. I am Dr. Ajay, Senior Manager at Technology Enabling Center, like associated with this for last 2.5 years now with Technology Enabling Center, and पूरी जर्नी एक मैंने कहूँगा कि एक साथ ही लिया है, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सर, मनु सर, आवर लाइक अंकुश वाज देयर. सो फेलियर्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से सीखा है इन एवरीथिंग. आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक स्टार्टिंग की बात बताता हूँ. स्टार्टिंग हाउ वी थिंक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी. एक टेक्नोलॉजी का पेटेंट है, उस पेटेंट के लिए हमने पढ़ना शुरू किया, उस पेटेंट को पढ़ लिया, उसका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे और इंडस्ट्री को भेजेंगे तो काम सारा हो जाएगा. ये हमने सोचा था, ऐसे किया. साइंटिस्ट के साथ बैठ के, मैम के साथ भी बैठ के एक पूरा 1 पेजर बनाया मैम के पेटेंट्स का. फिर पर वो क्लिक ही नहीं हो रहा. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को पिच कर रहे हैं, नहीं हो रहा. देन आया कि नहीं, हम साइंटिस्ट बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, एक नहीं सुन पाएगा, हो सकता है 5, 7, 10 को इकट्ठे करके बताएंगे, तब वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ एक आधा हो जाएगा. ये एक पसंद नहीं आ रहा होगा. फिर सबको बिठा के फिर एक कॉन्फ्रेंस करवा ली, पहले एग्जीबिशन लगवाई यहाँ पे ही कि देख लो क्या है. फिर कॉन्फ्रेंस करवा ली, फिर नहीं समझ नहीं आया. देन वी अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, हम कुछ गलत कर रहे हैं. देन वी इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस कैनवस वर्कशॉप. एक हमने बिजनेस कैनवस वर्कशॉप खुद ऑर्गेनाइज की, किसी ने बताया कि ऐसी चीज़ होती है, लगवाई, उसको अंडरस्टैंड करवाया, मैम के साथ ही करवाई. एक पूरा बिजनेस कैनवस मॉडल कैसे बनता है वो अंडरस्टैंड किया. देन फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन वी डिड द कॉन्फ्रेंस, वी इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस कैनवस मॉडल विद द टेक्नोलॉजीज. तो वो जब वो बिजनेस कैनवस मॉडल करवाया तो सक्सेस स्टोरीज सामने आनी शुरू हुई. उस टाइम पे इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ इंडस्ट्रीज का कि नहीं, ये टेक्नोलॉजीज वाकई ही प्रॉफिटेबिलिटी देती हैं. फिर समझ आया कि इंडस्ट्री को भाषा जो समझ आती है वो पैसे की आती है, कि व्हाट इज़ ROI, व्हाट इज़ मेरी कितने पैसा लगना है, कहाँ पे मार्केट है. उनको ये मतलब नहीं होता कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक साइंसेज ही हम यूज़ करते हैं. उनको ये मतलब होता है कि मैं पैसा इतना लगाऊंगा तो इतना कब बन जाएगा. तो वो बहुत टाइम लगाने के बाद, बहुत सारे फेलियर्स अंडरस्टैंड करने के बाद आज जो लेक्चर मेरे ख्याल से आपके सामने हुआ है, तो दिस इज़ वन फेलियर स्टोरी जो मैं कर सकता हूँ अंडरस्टैंड कि हमने सीखा है. एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, हमें लगता है कि इंडस्ट्री को बहुत सारा कम्प्लेक्स चीज़ आती है. जब भी हम शुरू में जाते थे, वी यूज टू पिच कि हमारे पास हम ये कर देंगे, हम AI लगा देंगे, हम ये इंडस्ट्री का, वी यूज टू विजिट शॉप फ्लोर्स ऑफ इंडस्ट्री वेरी ऑफन, और हम उनको बताते थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें कर देंगे आपकी इंडस्ट्री में. तो धीरे धीरे समझ आया कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं वहाँ पे. वहाँ पर काम क्या कर रहा है, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना. वहाँ पे काम कर रहा है उनकी बिल्कुल माइन्यूट लाइक मेरे बिल्कुल गंगाराम सर हैं यहाँ केमिस्ट्री में, बिल्कुल वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं. IoT लगा रहे हैं हम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टैम्प काउंट करना है उसको, मेरे कितना काउंट प्रोडक्ट बना है, सिंपल कैमरा लगा के मशीन काउंट कर रही है. दीज थिंग्स व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, वो बहुत बड़ी साइंसेस नहीं चाह रहे. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड लाइक. तो अब पता लग गया कि कैसे क्या अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पर पिच करना है, क्या बनाना है. ऑल दिस इज वी हैव लर्नड विद टाइम. फेलियर स्टोरीज इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स नाउ. हाँ, जैसे suppose आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की, so what you want is कि भी हमने मार्केट में मैंने लेके जाना, इंडस्ट्री को मैंने देखा, आपने उसकी कितनी वैल्यू डाली है, वैल्यूएशन ऑफ योर टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट को पता होनी चाहिए. नॉर्मली हम जाते हैं उनको 10 लगे थे, 15 कैसे कहा, कैसे निकाला आपने, दे हैव नो आइडिया. इंडस्ट्री बड़ी स्मार्ट है. इंडस्ट्री इज गोइंग टू आस्क, अच्छा 10 लाख कन्विंस अस. फिर वो कहता नहीं मेरा टाइम लगेगा, नथिंग नो यार, सही चलता ना, आप बताइए ना कितना. फिर वो कहता तेरे को तो पैसा क्या सारा तो गवर्नमेंट ने दे दी, राइट, क्यों नहीं. तो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड कि मुझे इससे जाने से पहले मेरे पास टेक्नोलॉजी पेटेंटेड होनी चाहिए, तभी वैल्यू बनेगी उसकी, राइट. पेटेंट मेरे पास आ गया ना, उसकी वैल्यूएशन क्या है, फॉर द राइट पीपल. कोशिश करो अपने आप ही डायरेक्ट बात करो. अगर कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कोई इंडस्ट्री है, डायरेक्टली बात करके देखो आपसे, पर डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको टेक के पास ही आना पड़ेगा। जैसे पेटेंट फाइल करना है उसके लिए पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, तो जो चीज़ें हमें मालूम है आप रॉन्ग, ओके, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ इसकी मुझे वैल्यू दी। सेकंड एक और चीज़ है कि राइट असेसमेंट ऑफ द टीआर, वैलिडेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको नहीं पता, क्योंकि मैं श्योर हूँ अभी भी कि आप इतने लोग यहाँ पे जो कमिट कर रहे हैं कि हमें टीआरएस समझ आ गया है, मैच कर सकते हैं, राइट। मुझे लगता है कि हाँ 80% विल फेल जब आपको पेटेंट टेस्ट दिया जाए, राइट। तो राइट असेसमेंट ऑफ द, बहुत गलत जो हमारे पास जो ईओआई आते हैं ना उनमें टेक्नोलॉजी कुछ और लिखा होता है, लेकिन जब हम मीटिंग करवाते हैं और जब फिजिकल विजिट होता है इंडस्ट्री का वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें वो है बिल्कुल ऐसे रहता है कि हाँ कि ये तो चीज़ यहाँ थी क्या है, तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। और सबसे बड़ी हमारी जो है वो ड्राबैक रहती है कि क्योंकि असेस नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी को, हम तो सिर्फ उनसे रिसीव करते हैं टेक्नोलॉजी, तो हमें नहीं पता है हम उनकी लेबोरेटरी में, क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल हम डिज़ाइन यहाँ नहीं हुआते हैं कि शोकेसिंग कर सकें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इसमें। स्टार्टअप को लेके जो आप फेलियर स्टोरी अगर समझना चाह रहे हैं, तो एक तो जैसे मैंने फाइनेमिक्स की बताई, फाइनेमिक्स में इन्वेस्टर से भी पैसा आ गया, इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपया दे दिया, और उसमें वो टेक्नोलॉजी भी रेडी थी, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी हो रखा था, 4 साल काम हो रखा था, पर वो जो जिस लड़के के ऊपर पैसा लगाया ना, वो लड़का उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियलिटी वो चीज़ नहीं थी उसमें, वहाँ मिस्टेक हुई। वो कहीं वो नौकरी वाला माइंडसेट ही था उसका, और वो उस क्लैरिटी के साथ नहीं आया था। वो ही वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग हिज कैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसने देखा, वो पहले पहले उसको लगा, मेरे को ध्यान है वो यूआईटी का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का था, तो बहुत शार्प, आप उसको कोई पेटेंट दोगे ना तो 15 मिनट में वो उसको अच्छे से समझ लेता था। तो मेरे को बड़ा शार्प लगा हर एक तरीके से। तो उसको मैंने एक दिन पिच किया कि यार भाई तू इसके ऊपर स्टार्टअप करना चाहेगा? कहता हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है, यस। उसको वो एक रहता है ना स्टार्टअप फाउंडर सीईओ वाली फीलिंग। उसको इन्वेस्टर से मिलवाया, इन्वेस्टर भी रेडी हो गया, पैसे दे दिए। पर जब हार्डशिप्स आई, जब उसको खुद लेबर ढूंढनी पड़ी, हाथ काले करने पड़े, कपड़े गंदे हुए उसके, मैकेनिकल में तो ऐसे रहता ही है, तो ममा का उसको प्रेशर पड़ा, ये गिव अप। उसने कहा मेरे को तो आगे की पढ़ाई करनी है। इन्वेस्टर का 10 लाख डूब गया, और उस इन्वेस्टर को मेरे को फेस करना बड़ा मुश्किल है, आज तक फेस नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि 2-3 दिन पहले एक भरे हॉल में उस इन्वेस्टर ने मेरे को पब्लिकली पॉइंट आउट किया कि भाई इस बंदे के बोलने पर मैंने वहाँ 10 लाख रुपए लगाए और 10 के 10 लाख डूब गए। और उसके मामा ने बोला कि मेरे को ये तेरा ये काम पसंद नहीं है, तू छोड़ दे। और मेरे को आके वो बोलता है, मामा ने बोला कि छोड़ दे, तो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं मामा की बात नहीं टाल सकता। मनु ये कह रहा है कि if your mummy is child, तो start सर मम्मा की बात रोज काम मानते हैं, जो खुद मानना चाहे वहाँ मम्मा का नाम यूज करते हैं। ये भी है इनका, टीचर की बात, मम्मा की बात, वो इनके मूड पे होती है। और एक और फेलियर स्टोरी है थोड़ी। उसमें क्या था कि यहीं यूनिवर्सिटी में एक कंपनी है, वो ठीक चल रही है। तो पहले उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया जो कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करता था, कि आप उसको शॉप फ्लोर पे लगा दो तो वो प्रेडिक्ट करता था कि ये कब मशीन ख़राब होने वाली है। अब उन्होंने वो जो विजुलाइज़ किया, इमेजिन किया, वो अपने हॉस्टल में बैठ के या क्लासरूम में बैठ के विजुलाइज़ कर लिया। क्लाइंट को इनोवेशन जर्नी में डे 0 से इन्वॉल्व नहीं किया। क्लाइंट को इनोवेशन जर्नी में डे 0 से इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको फिजिकली टच करना चाहिए क्लाइंट को, उससे इनोवेशन करवानी चाहिए साथ में मिलके। तो उन्होंने उसको नहीं किया। उन्होंने कुछ तैयार कर लिया, बहुत खुश, पैकेज भी कर लिया, खूब पैसा भी लगा दिया, अपनी जेब से भी लगवा दिया, गवर्नमेंट का भी लगवाया। अब जब मार्केट में जा रहे हैं तो वो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे, उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। फिर उनके पेशेंस लेवल एक समय के बाद कम होने लग गया। फिर उसके बाद वो जो फाउंडर्स थे वो आपस में ही लड़ पड़े, और फिर आपस में लड़ पड़े, फिर ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप यही तरह के होते हैं। सारे इलेक्शन में ऐसे होने चाहिए।
अब एक और स्टार्टअप है जो कि उसमें क्या किया है उसने, एक स्टार्टअप अभी जो चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है अभी, टचवुड, उसको इन्वेस्टमेंट भी दिलवाई है हमने। उस स्टार्टअप में उस बच्चे ने डे -1 में क्लाइंट को साथ में मिल के उसने इनोवेशन स्टार्ट किया। उसने अपनी इनोवेशन शॉप फ्लोर ऑफ इंडस्ट्री से स्टार्ट की। तो वो ये जो डॉक्टर अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो ये विज़िट किया इन्होंने, तो वहाँ से इन्होंने देखी प्रॉब्लम कि भाई जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में जो एफ्लुएंट है उसकी ट्रैकिंग का इशू आता है ट्रक में। तो ये लेकर आए प्रॉब्लम, फिर बच्चों से शेयर करनी शुरू की कि भाई कोई देखो कोई कर सकता है ये ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। टैंकर में कितना एफ्लुएंट जा रहा है, जो मालिक है वो चाहता है मेरे मोबाइल पे नज़र आता रहे कि कितना एफ्लुएंट है ट्रक में। फिर एक लड़का आया, बात की, उसने मिलाया उनके साथ। तो फिर वो जब मिलवाया तो उसने डे 0 में ही उसने 3 लाख रुपए दे दिए, ले भाई तू करेगा ये, लो पकड़ो। जस्ट इमेजिन, क्लाइंट के पैसा डे 0 में ही मिल गया। किसको? एमटेक के स्टूडेंट को। लकी नहीं मैम, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पीओसी तो उसने बना के दिया। पहले उसको, अच्छा उसको पहले वो बहुत बोलता रहा उसको कंपनी वाले को कि भाई हम आपके ट्रक का जो है मोबाइल पे ला देंगे, ट्रक का जो डाटा है मोबाइल पे ला देंगे। लुधियाना का सेठ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसने एक दिन क्या किया, एक बीकर ले गया, बीकर में एक छोटा सा सेंसर ले गया और उसके टेबल पे रखा। उसको बोला ये देख यार, ये देख सेंसर है, ये तेरे अपना मोबाइल खोल, मोबाइल पे सारा डाटा आ रहा है कि नहीं। अब मैं पानी थोड़ा सा इसमें कम कर रहा हूँ, रीडिंग चेंज हो रही है। तो हाँ यार तू तो कर लेगा, है ना। तो एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड। और उसने फिर उसको 3 लाख की फंडिंग दे दी जब वो एमटेक कर ही रहा था, जैसे आप सब कर रहे हो। 3 लाख की फंडिंग दी उसने, फिर आगे उसका सारा बनाया। अब वो नेगोशिएट कर रहा है उससे, 20 लाख का ऑर्डर नेगोशिएट कर रहा है। इन्वेस्टर से उसको 10 लाख की फंड मिला है। और बाकी कंपनीज में अपने जो वो है ना प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर रहा है। डाईप्लास्ट में उसने डिप्लॉय कर दिया अपना प्रोडक्ट। अब प्रतीक सानी के एफर्ट से वर्धमान केमटेक में वो अपना उसको बिजनेस मिलने का अच्छा चांस है। तो इस तरह से जो टेक है इस तरह से एम्पावर कर रहा है आप सबको टू क्रिएट योर ओन स्टार्टअप्स विच आर हेल्दी फ्रॉम डे 0। That is what I'll say कि learn from our failures, join this create your startup। इसमें हम बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल्स को बताते हैं, शेयर करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इन फैक्ट वी ऑल्सो शेयर प्रॉब्लम्स ऑन विच इंडस्ट्री इज लुकिंग कि क्या करना चाहिए। लाइव इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ बैठ के तो नहीं पता लग सकता। व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स टू विच ऑन विच यू कैन वर्क। और अगर किसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे भी बनाना है तो वी हैव लिस्ट ऑफ वेरी गुड पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज। उस पेटेंट टेक्नोलॉजी पे भी अपना रिसर्च इंटरेस्ट रखते हुए वी कैन लुक इनटू फॉर क्रिएट स्टार्टअप्स। और ऐसे लाइफ एग्जांपल्स, बिजनेस मॉडल्स जो टैम सैम सॉम आज पढ़ा जो भी किया होगा वो पूरा इलेबोरेटेड आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स वी लेट यू अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिकल थिंग्स। यू शुड ज्वाइन। मेरे ख्याल से दिस इज द वंडरफुल इनिशिएटिव। और अगर किसी के अंदर भी ज़ील है टू क्रिएट स्टार्टअप, ही शुड ज्वाइन दैट। Any other question? So startups are meant to fail. मेरे वेबसाइट बताओ That कहाँ is पर what I मिलेगा? would like to say. We're trying to display it. हाँ जी, लिंक बता दो कहाँ पर है मेरे वेबसाइट। लिंक यू कैन स्कैन दिस एंड रजिस्टर। we will share this in the group also. ग्रुप में शेयर कर देते हैं हम अभी, है ना, जस्ट टू लेट यू नो। सो स्टार्टअप्स आर सपोज टू फेल। आई वाज रीडिंग समवेयर नॉर्वे या किसी कंट्री में, जब वो कोई स्टार्टअप पिच करने जाता है अपना, तो दे आस्क हिम फेलियर्स कितने हुए हैं। सो द मोर नंबर ऑफ फेलियर्स यू हैव, मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग दैट यू नो pitch or getting that funding are more. और I remember my father used to say कि अगर एक बारी worst के लिए prepared हो जाओगे ना, फिर जो भी होगा उससे अच्छा होगा, so अच्छा ही होगा। so worst ये है कि हम fail करेंगे, हमें startup बंद करना पड़ेगा, ठीक है। so ये हम सोच के चलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि
कुछ ना कुछ होता जाएगा एंड वी वुड नो क्या चीज़ें इसको बंद करवा सकती हैं. तो वहाँ से अगर शुरू करेंगे अपनी जर्नी तो बिकॉज रियलिटी चेक तो यही है ना, रेन चेक तो करना ही है एंड चांसेस हैं कि वो फेल करेगा, लेकिन फेल करने से पहले मैं उसको बेच देती हूँ, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है या उसके कोई बायर्स आ जाते हैं या मेरी टेक ट्रांसफ़र हो जाती है. तो आई थिंक आई एम अ विनर एंड आई द एक्सपीरियंस दैट आई गेन आउट ऑफ इट दैट इज़ गोइंग टू स्टे विद मी फॉर द होल लाइफ. मेरी छोटी रह गई है, तुम लोगों की ज़्यादा है अभी. So you will the experience would last you even longer, but don't shy away from it. अगर मन में इतनों का भी मन में आता है ना कि मुझे स्टार्टअप करनी है तो कर लेनी चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए, है ना. ट्राई करने से पहले नहीं छोड़ना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स द मैसेज सब टेक वालों का भी, मेरा भी, सर का भी, हम सब यही चाहते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, है ना. सो वी आर ऑल लुकिंग टूवर्ड्स दैट. सो I think with this we can close, and this is the time we would like to honor both our resource persons, and we are so very grateful. Dr. Manu is a very busy person, पर मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं मुझे एक सेशन आपसे करवाना ही करवाना है. ही kept on saying नहीं नहीं मेरे मैनेजर्स आ जाएंगे एंड ही हैज़ बिन वेरी बिजी. कभी कभी मेरा जवाब नहीं देते थे, कभी कभी देते थे, लेकिन वो किसी बात के लिए भी मुझे कॉल करते थे तो मैं सबसे पहले कहती थी मेरा प्रोग्राम तो करवा नहीं रहे हो, मुझे आपका टॉक चाहिए उसमें. सो आई थिंक इवेंचुअली आई कुड कन्विंस हिम टू कम एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस गेन्ड एन इंसाइट फ्रॉम दैट. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मनु. एंड ये बोनस हो गया कि सर हमारे पास आ गए आज. Professor Rupinder Tiwari has so much of experience behind him. I think his energy, वो कहते हैं ना सर के साथ तो shoulders ऐसे कर लो. So I think we can all learn so many things from him. Thank you so much, sir. सर आप मनु को मिलेगा ना. चलो गुड. बाकी मनु भी डॉक्टर मनु आप चलो ठीक है. चल मैं सर ऐसे आओ. अरे नहीं डॉक्टर मनु आप I'm sure every one of you would agree. We had a lovely sessions with the tech team, and we had the energy of 4 managers with us. और उनके ऊपर से डॉक्टर मनु और डॉक्टर मनु के ऊपर the mentor प्रोफेसर तिवारी. So I'm sure. हम लोगों के लिए कितनी इनके लिए रिस्पेक्ट है ना बेटे, बता नहीं सकते. So can have a picture with you with the tech team. प्रतीक आ जाओ बेटे. अच्छा दिव्या कर देंगे. बाकी कोई वरिंदर बेटे आओ उधर. No, you should be in the center. सादा भी रहेगी ना. हाँ सर. फोटोशॉप. Thank you. कुछ टैक्सेस ही